Morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good Morning. morning, sir. Good morning, sir. Okay, so 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं जिससे कि बाकी लोग भी आ जाए, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं।
Okay, students. So here now we will start our session. So I am sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so see, yesterday we have created some functions, and what is the main prominent feature of function? क्यों यूज करते हैं फंक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है फंक्शन की? Reusability, modularity. Reusability means once we have defined any particular function, if I want to use the same function multiple times in multiple programs, we should be able to do that. So now we will check. See, we have already created some functions. We have created one file, this function example, right? So if I'm opening it, here in this file, we have defined various functions. So if I want to work with any of these functions defined here, you just need to call it. कोई भी function मेरे को करना है, change करना है. If I'm working with the same session, and here if I want to make use of any function, it is working, right? It is working. We have already seen. So in the same session, it is working. But as per the reusability, even if I want to use if I want to access this function in another program, we should be able to do that. So we will check now. So मैं एक और different session open करता हूँ यहाँ पे. I am opening a new session, and if I try to do the same thing here now, अगर मैं यहाँ पे access करने की कोशिश करूँ functions को, here it is not working. It is showing a name error. Name add is not defined, right? So although we have defined and earlier it was working. अगर मैं same session के साथ काम कर रहा हूँ, it is working. But now here it is not working. Why? Because see, whatever functions we have defined, we are organizing this function in the form of this file, and the name of this file is function example.py, right? So this file, whatever name you are giving to this file having extension .py, this name is known as module name. तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल नेम. अगर इस केस में अभी क्या है कि मेरे केस में मेरी जो फाइल का नेम है, इसको तो क्लोज कर देते हैं. माय फाइल नेम इज दिस फंक्शन एग्जाम्पल. .py, ये जो फाइल है हमारी with .py extension, we are working with this file. So here whatever name you are using with this .py, actually this name, this is known as module. So this is our module name, right? So what is module? What is module basically? So basically module, it is, as you know, it is a file having extension .py which is used to organize our code. Basically हम जो भी define कर रहे हैं, we can write our code in the form of functions, classes या simple expressions भी हो सकते हैं. So we are whatever we have written, whatever we have defined, right, in terms of function, classes, simple expression, we are organizing that thing, we are organizing our code by using this file, and this file name is known as module. So basically that is why we call this module used to organize your code. और ये जो कोड है मेरा, जो भी कोड हमने लिखा है, that code may be written in the form of functions. ये हमारे functions हो सकते हैं,
क्लासेज हो सकती हैं जो फर्दर हम देखेंगे, या मेरे सिंपल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो किसी रिक्वायरमेंट के लिए हमने डायरेक्टली लिखे हैं, जो हम फंक्शन सेशन से पहले कर रहे थे, तो सिंपल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. So that is a module, and whenever you are defining in terms of module, basically, so whenever you want to access anything contained by a particular module, first of all you need to import your module. Already आपने work किया हुआ है math module पे, and math module contain various mathematical, arithmetic and logarithmic functions, and if you want to access any functions contained by a particular module, what do you do for that purpose? Yes, what we are doing for that purpose, first of all we need to import the module, right? So अगर जैसे हमें पता है हमने यूज किया सिंपल सा SQRT function, it is contained by math module. So if I want to access this SQRT module, first of all we need to import the module. If you will try to access this directly, it is not available, it will not be accessible. Only those functions which are available in built-in namespace can be accessible directly, as I have already mentioned, right? जो हम एक एट्रीब्यूट dir डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन डबल अंडरस्कोर से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी हमारे केस में भी क्या है, इन आवर केस हमने एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट की हुई है, एक मॉड्यूल क्रिएट किया फंक्शन एग्जांपल विच इज कंटेनिंग वेरियस फंक्शंस. सो इफ आई वांट टू एक्सेस दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, राइट. एक मिनट रुकिएगा. हाँ जी. Hello. Okay, so here, as I have mentioned, here we have created this module and it is containing various functions. So obviously अगर हम किसी मॉड्यूल के अंदर कोई हमने जो फंक्शनैलिटी डिफाइन की हुई है इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस और क्लासेस, अभी तो फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं. इफ यू वांट टू एक्सेस एनी फंक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल, राइट. सो अब वो ट्राई करके देखते हैं. अब हम ये ट्राई करते हैं. तो हमारे मॉड्यूल का नेम है import and my file name is this function example, right? So और as it is case sensitive of Python, तो जिस केस में लिखा है ना अपर लोअर, you need to be careful with that.
तो यहाँ पे here we have specified function in lower case and with after that example in example E in upper case. So you'll write import and your मॉड्यूल नेम, py नहीं लिखना है, केवल मॉड्यूल नेम ये नेम है जो हमने इस py फाइल को दिया हुआ है. So if I'm trying to access this, see still we are getting error. It is showing module not found error. जबकि यहाँ पे है हमने तो यूज भी किया हुआ, एग्जीक्यूट भी हो रहा है. So why we are getting this? Why we are getting this? So actually what happened, moment we are writing import and some module name, obviously our Python interpreter will look for the definition somewhere for this, and obviously this name is not available at those location where our Python interpreter is looking for it, right? So it is not there. So what are those location where our Python interpreter is looking for the definition of a particular type, means in this case module? What are those location? So basically Python interpreter follows some list of directories, and moment you are writing import and your module name, Python interpreter, first of all Python interpreter will look for the definition. Python interpreter look for the definition, search for the definition in current working directory first. सबसे पहले वो current working directory में देखेगा. After that if it is not there, फिर वो Python path वेरिएबल के थ्रू जो आपने सेट की हुई है डायरेक्टरी उनको देखेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, इसको अभी हम करने जा रहे हैं. फिर पाइथन पाथ वेरिएबल में जो हमने डायरेक्टरी लिस्ट स्पेसिफाई की है, डायरेक्टरीज उस वहां पे इस डेफिनेशन के लिए देखेगा डायरेक्टरीज. इफ इट इज नॉट देयर देन इट विल लुक इन द सर्च पाथ डायरेक्टरीज. इवन दिस लोकेशन इज आल्सो वन पार्ट ऑफ सर्च पाथ डायरेक्टरी. अब ये सर्च पाथ डायरेक्टरी क्या है, इस पे भी आते हैं अभी. बोल सकते हैं सर्च पाथ. तो सर्च पाथ इज नथिंग, it's an attribute through which you can see some list of directories where Python interpreter is looking for the definition of something. जैसे import लिखेगा तो इन लोकेशन पे करता है. This current working directory is also one part of it. Python path में जो सेट करता है, this will also be the part of it. तो basically mainly search path ही है. So how will you know about your current working directory? So see, to know about current working directory कि इस particular time पे मेरी current working directory क्या है, for that purpose you can use one module OS. OS से related जो files हैं उन पे अगर हमें काम करना है, you have one standard built-in module OS. तो मैंने पहले इसको import किया. Within this OS we have one function get CWD. See, get current working directory. So whatever will be current working directory, it will show you that. So in my case, my current working directory is this. सबसे पहले Python देखेगा इस module की definition के लिए इस location पे. Obviously, तो अभी ये current working directory ये है हमारे केस में. And obviously when we are using this, ये आप चेक कर सकते हो, आपके केस में डिफरेंट भी हो सकती है. सो अभी इस लोकेशन पे यहाँ पे सर्च कर रहा है. बट अभी क्या है कि अब मेरा जो डायरेक्टरी है, हमारी डायरेक्टरी के हमारे जो मॉड्यूल है वो किस लोकेशन पे है. आवर मॉड्यूल इज एट दिस लोकेशन. हमारी जो मॉड्यूल फाइल है उसका पाथ ये है, राइट. सो ऑब्वियसली तो ये जो अभी यहाँ पे तो है नहीं मेरा पाथ, मेरा जो मॉड्यूल फाइल है वो तो इस लोकेशन पे है, तो इसने तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो है नहीं. फिर ये क्या करेगा, पाइथन पाथ में जाएगा. पाइथन पाथ को हम सेट करते हैं, इसको अभी हम देखेंगे. फिर अगर नहीं है तो सर्च पाथ में भी देखेगा. अभी सर्च पाथ क्या है, सर्च पाथ को ले लेते हैं पहले, फिर पाइथन पाथ लेंगे. सो सर्च पाथ बेसिकली
अनदर मॉड्यूल, जब भी मैं सिस्टम फाइल पे काम करना चाहता हूँ तो देर इज वन मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल फॉर दैट sys, एंड विद इन दिस sys मॉड्यूल, इसको पहले इंपोर्ट कर लिया हमने, विद इन दिस मॉड्यूल देर इज वन एट्रीब्यूट path, व्हेन यू विल यूज दिस sys.path इट विल शो यू सम लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, इसी को हम बोलते हैं सर्च पाथ। ये जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है इसी के लिए हम सर्च पाथ यूज करते हैं। तो इफ यू लोकेट द डायरेक्टरीज, अब मैं डायरेक्टरीज की लिस्टिंग को अगर मैं देखूं यहाँ पे, थोड़ा फॉन्ट कम कर लेते हैं। I think it is also visible properly, right? Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. So here, these are the directories. Even जो current working directory है ना, ये this is also one part of it. This is also one part of it. तो अभी जो मेरा my module is available in this path. So as you can see, this path is not the part of it. So obviously जब Python interpreter ने सर्च किया तो उसको मिला नहीं कहीं पे भी, इसलिए उसने एरर रिटर्न कर दिया। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इफ, तो अब इसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है कि if somehow I can set this directory as a part of the search path, then our Python interpreter will be able to identify। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेट कर सकते हैं Python path वेरिएबल। तो Python path वेरिएबल को सेट करके वहां पे हम उस डायरेक्टरी को बताएंगे, once you have done this, after that it will be the part of your search path। अभी नहीं है यहाँ पे, बट जैसे ही आप इस Python path को सेट करेंगे then it will be the part of it। तो अब हम यही करने जा रहे हैं, अभी तो है नहीं, अभी तो इसका पार्ट है नहीं। सो व्हाट वी विल डू, कैसे करेंगे Python path सेट, जैसे हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना बताया था ना इनिशियली सेशन में, मैनुअली कैसे करते हैं, तो उसी को करेंगे। कैसे, हाउ कैन यू सेट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, वी आर गोइंग टू सेट Python path वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सो कैसे, तो जो भी आपका माई कंप्यूटर आइकन है, दिस पीसी, राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू द प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट दिस एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस टैग सेलेक्टेड है क्योंकि इसी पे क्लिक करके हम आए, एंड हियर यू हैव वन ऑप्शन इन्वायरमेंट वेरिएबल, एंड इन दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल देयर आर टू कैटेगरी, यूजर वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। तो यहाँ पे यूजर वेरिएबल हम अपना बनाएंगे, तो हियर वी विल बी डिफाइनिंग इट। सो क्लिक ऑन न्यू एंड इन वेरिएबल नेम टाइप दिस Python path, और ये अपर केस में ही होना चाहिए, एंड हियर यू कैन स्पेसिफाई दैट डायरेक्टरी और डायरेक्टरीज वेयर यू हैव प्लेस्ड योर मॉड्यूल फाइल। अगर वो पार्ट नहीं है आपके सर्च पार्ट डायरेक्टरी का, अगर सर्च पार्ट डायरेक्टरी में कर रहे हैं आप डायरेक्टली सेव तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है देन यू कैन स्पेसिफाई। तो अब मैं अपने लोकेशन को लेता हूँ जहाँ पे हमारी मॉड्यूल फाइल्स है, सो आई एम कॉपिंग इट, और इसी यहाँ पे जो वेरिएबल वैल्यू है वहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। आफ्टर दैट इन द लास्ट आई कैन पुट सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हम कोई और डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं, तो ये सेमीकोलन सेपरेटर की तरह वर्क करता है। सो दिस सेमीकोलन विल बी वर्किंग एज सेपरेटर बिटवीन टू डिफरेंट डायरेक्टरीज लोकेशन। नाउ आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके, ओके ओके, सो वी हैव सेट इट। तो इसको एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। सो आइडियली, एंड इफ यू चेक इट नाउ, अब सर्च पाथ हम चेक करें, इंपोर्ट sys dot path, if I'm checking it now, so अब अगर हम चेक करें तो see our directory is one part of it now। अब मेरी डायरेक्टरी इसका पार्ट है। अब अगर मैं दोबारा वही ट्राई करूं, इंपोर्ट, पहले नहीं हो रहा था, पहले इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, फंक्शन एग्जाम्पल, see it is imported now, it is imported now, right? So once it has been imported, after that moment you are putting dot, so all the functions available within it will be accessible to you। अब जो भी आपको यूज करना आप यूज करिए। अब ये बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम करने लगा, जैसे मैथ करता है ना, मैथ डॉट, तो हमने जो बनाया फंक्शन वो अवेलेबल हो गए, और एज पर द फंक्शनैलिटी दे विल बी
performing the operation, right? तो जो भी हमने डिफाइन किया था, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। वैसे तो जब आप डॉट करते हो थोड़ी देर बाद दिखाता है, लेकिन इमीडिएटली दिखाना है डॉट करके आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्लेस कर सकते हैं, और कोई भी फंक्शन जो भी आप चाहे यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल वैल्यूज ले सकता है, तो एज पर द फंक्शनैलिटी इट विल शो द आउटपुट। सो in this way you can import the module. Now with this, now we will Sir, can you just show the path thing once more? Just how to put the new path in the environment variable just for. Yes, I'll repeat it. So for that purpose, as I mentioned, you need to set Python path variable. How can you do that? I'm repeating it. So for that purpose, you will go to the my computer icon, this PC, whatever it is being displayed in your system. Just right click on it, go to the properties and advanced system setting, advanced environment variable, and here you need to specify. I have already done it, but in your case if it is not there, you can just click on new पे click करेंगे. When you are clicking new, it will ask for variable name and variable value. In variable name you will type Python path in uppercase only, and in variable value you will specify the specify that directory or directories where you have placed your module file, right? After that, just click, just complete it by clicking on OK on all the open windows, right? In that way you can set it. Okay, sir. Now with this, now we will move on to our PPT. We will have a look at it and see some more facts about it. So here, now, so see, now you can understand this. So a module, what is Python module? A module allows you to logically organize your Python code. Grouping related code into a module makes the code easier to understand and use. So see, suppose I want to define many functions. Some functions are related with mathematical operations. Some other functions are related with, suppose, network security kind of thing. Some other functions are related with some mapping related operations. So one option is that you are putting all these functions in one module file, right, at one place. But it will not be actually good way to do this, because जो logically यहाँ पे better तरीका क्या होगा कि is there any way that whatever function are logically related in some way, we can put it at one place, and those functions which are logically related in some other way, I can put it differently. So I want that with the help of module, I can do one thing, that I can put all the mathematical operation related function in one module file. I can put all the network security related function in another module file, and I can put all the mapping related function in another file, right? So in that way, the organization of our code will be better. तो organization तो organize तो हम कर ही रहे हैं अपने code को, जो code लिखा हो सकता है in the form of functions and module. We are organizing that, right? We are organizing that in the form of module, right? Even you can manage it also in better way, that with the help of module you can put only logically related function in one module file. So grouping related code into a module makes the code easier to understand, and even the management and further maintenance of your project will be easier in that way. A module is a Python. So basically, what is in a module? What is a module? A module is a Python object with arbitrarily named attribute that you can bind and reference. So you can give any name to it. And we have various built-in module also. Simply, a module is a file consisting of Python code. A module can define a function, classes, and variables within it. So modules refer to a file containing Python statements and definitions in terms of functions and classes. A file containing Python code, for example, example.py, is called a module, and its module name would be example, right? So we use module to break down large program into small, manageable and organized files. Modularity वाली चीज, इसलिए तो modularity बोलते हैं उस प्रोसेस को जहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपनी टास्क को. Furthermore, module provide reusability of code. You have just seen it. We can define our most used function in a module and import it instead of copying the definition into different programs. Example we have already taken. So right now we have imported only one module at a time, but actually you can use this syntax
to import one or more than one module also. यहाँ पे जो square bracket है ना इस syntax part में ये it is showing that it is optional. So with one import statement is possible that you can import one or more than one module. If you are importing more than one module in one line, all the module names should be separated from each other by using comma in between, right? So that we can do. तो इनको हम एक साथ भी लिख सकते थे, जो हमने इंपोर्ट किया है ना अलग अलग, इनको हम एक साथ भी कर सकते थे. आई कैन राइट लाइक दिस इंपोर्ट मैथ सिस ओएस फंक्शन एग्जांपल. आई कैन डू दिस लाइक दिस आल्सो. तो आप यहाँ पे मल्टीपल को साथ कर सकते हैं. नाउ there are various other ways also to import module, and we can make use of these differently as per our requirement, right? So importing module, there are many ways to import your module. Now here I will discuss that. So you can import a statement, import with renaming the from import statement, import all names by using from import statement. Already we have used this import statement, but there are some other alternative ways also that can be used to import your module. See, यहाँ पे जब भी मेरे को किसी मॉड्यूल पे काम करना है, whenever I want to work with any module, बेटर एक और आइडियली ओपन करें फ्रेश. So whenever you want to work with any module, suppose मैथ के अंदर मेरे कई फंक्शन है जिन पे मेरे को काम करना है, SQRT, फ्लोर, सील, राइट? There are so many. Constant भी है, पाई. So if I want to work with math module, and if you are using this approach, import math. So every time whenever you want to access any functionality defined within this module, every time you need to write module name dot. After that you are specifying your function name, and you can work with that. It will show you the output accordingly, right? So every time you need to write it. Constant भी होता है इसके अंदर, पाई, उसको भी हम access कर सकते हैं, right? So you can access anything contained by this math module. But so every time you need to write module name dot function name, module name dot function name. I don't want to use that. मैं कुछ short name use करना चाहता हूँ, right? इसके लिए मैं I want to use some short name. So how can you do that? So we can use this second approach, import with renaming. So how can you do that? Come to that part. So here if you can do the same thing like this, import your module name. It can be your user-defined module or it can be your predefined module, built-in module. So you can rename it. So एक temporary name दे सकते हैं इसको, कोई short name m. Suppose here I have given m. It is defined by you. After that मेरे को पूरा word लिखने की जरूरत नहीं है. Even if I am using m dot, all the functions contained by this math module will be accessible to you. तो इसमें अगर कोई और function भी अगर आपको access करना हो, जैसे floor function मैं access करूँ यहाँ पे, you can work with that also. floor value दे रहा है, तो ये भी एक प्रोविजन है. जस्ट लाइक दैट. अब यहाँ पे अगर आपने नेम दिया ना, ये केवल इसी सेशन तक है, टेम्पोरेरी है. जस्ट लाइक दैट कि जैसे आपके निकनेम होते हैं ना फैमिली में, है? हो सकता है कि योर नेम इज दिग्विजय सिंह ठाकुर, बट हो सकता है फैमिली में आपको डिग्गू ही बुलाते हो, राइट? सो इट डजंट मीन कि वहाँ डिग्गू बुला रहे हैं तो आपका जो ऑफिशियल नेम है जो यूज होगा एक्चुअली that will be Diggu. No, it will be Digvijay Singh Thakur, whatever is your original name, whatever is specified in your certificates, right? So जो हमने डिफाइन किया ओरिजिनली यही रहेगा. We are just, it is just aliases. It's kind of alias, temporary है ये, ठीक है? Nickname है इसका. So that is one approach. Another approach that, but still in this approach also still you need to write this. Whatever you are specifying, whatever name you are specifying here, you need to write that also. बट सपोज मेरे को डायरेक्टली यूज करना है, देन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना चाहूँ SQRT, मेरे को वो भी नहीं लिखना, ये एम भी नहीं लिखना, मतलब जो शॉर्ट टेम है. सो ऑब्वियसली राइट नाउ इट इज गिविंग यू एरर. बट अगर आपको यूज करना ही है, देन यू कैन यूज दिस अनदर अप्रोच, द फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट. उस केस में आप इस तरीके से आप करेंगे. इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है आपका, अगर मैं फ्रॉम यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो एक तो सिंपल इंपोर्ट हो गया, एक इंपोर्ट विद रिनेमिंग हो गया, एक हो गया बाय यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, इसको यूज करके, राइट?
अभी इसका सिंटेक्स क्या है? बेसिकली वी आर राइटिंग लाइक दिस, फ्रॉम मॉड्यूल नेम import and your functions or classes that you want to specify. तो यहाँ पे जो भी functions contain कर रहा है ये उनके नेम जिनको आपको यूज करना है, उन सब के फंक्शन कांस्टेंट जो भी है जो मॉड्यूल कंटेन कर रहा है उनके आप नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन 2 इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. जैसे हियर इफ आई एम यूजिंग फ्रॉम मैथ, सपोज ये मॉड्यूल मेरा बिल्ट इन भी हो सकता है और यूजर डिफाइंड भी. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग दिस बिल्ट इन वन, बट इट कैन बी योर प्रीडिफाइंड वन, योर डिफाइंड आल्सो, योर डिफाइंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आल्सो. फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, सपोज मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट इन माय प्रोजेक्ट, आई वांट टू यूज ओनली एसक्यूआरटी एंड फ्लोर सपोज, और कांस्टेंट पाई भी यूज करना है. चलो, so whatever you require in your project from any module, you can specify the name of those function or classes here. If you are importing the functionality from any module by using this approach, in that case even you need not to write math dot or renaming की भी कोई जरूरत नहीं, आप directly use कर सकते हो. अभी error दे रहा था, but right now if I try it again it will be working. Similarly floor, अभी तक हम m डॉट करके या मैथ डॉट करके कर रहे थे, अब डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. बट इस अप्रोच में आपको एक ध्यान भी रखना है कि इस अप्रोच में सपोज मैंने यहाँ एसक्यूआरटी फ्लोर पाई इनको एक्सेस किया तो इनको तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. लेकिन I know that we have one function seal also, sealing, which will give you the upper complete number. So अगर मैं इसको ट्राई करूं, so it is not working. तो इस अप्रोच में क्या होता है, only those function will be accessible directly whatever name you have specified here. तो अगर मेरे को ऐसे restricted manner में काम करना हो कि मेरे को I don't want to provide a feature where I should be able to access all the functionality available within a content. I want to access only those functionality which are required in my project. You can specify like this. तो little bit restriction यहाँ पे हम provide कर रहे हैं. लेकिन अब इसको हम दूसरे terms में ले, opposite manner में. If I want to use this approach for all the function, all the functionality, all the function classes contained by a particular module, how can you do that? कि मेरे को सबके लिए करना है. अब ऐसा नहीं कि मेरे को कई सारे फंक्शन यूज करने, सबके नेम लिखने पड़ेंगे, तो फिर वो भी कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ. सो इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फंक्शन, इसका ही एक वेरिएशन है. इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, फंक्शन नेम, क्लास नेम, यू कैन जस्ट पुट स्टार हियर. इफ यू आर पुटिंग स्टार, इट मीन्स नाउ यू कैन यूज दिस अप्रोच फॉर ऑल. स्टार मीन्स ऑल द फंक्शनैलिटी कैन बी यूज. अब आप कोई भी यूज करें. सी, अब चाहे मैं एसक्यूआरटी यूज करूं ये भी काम करेगा, फ्लोर यूज करे वो भी करेगा, सील यूज करे ये भी काम करेगा, राइट. सो these are different approaches, these are different alternative approaches to import your module. Whatever you feel suitable for your requirement, you can use that approach to access the functionality by importing the module. तो module को import करने के लिए you can use these different approaches. यहाँ पे हमने यूज किए भी हैं, उसके एग्जांपल्स भी हैं. बाकी सर्च पाथ का ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. सो व्हाइल इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, पाइथन इंटरप्रेटर लुक्स फॉर a definition at several places. Interpreter first look for the built-in module, and if it is not found there into a list of directly defined in syspath, then Python path पे भी जाएगा. तो ये ऑर्डर हम यूज करते हैं. पहले करंट वर्किंग डायरेक्टली, अगर नहीं है तो पाइथन पाथ पे, और यहाँ पे भी नहीं है तो फिर आपके सर्च पाथ जो बताया ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. इसको यहाँ पे कोड भी यूज किया हुआ है जो हमने यूज किया था, राइट. तो ये अब आते हैं रिलोडिंग ऑफ मॉड्यूल. अब रिलोडिंग ए मॉड्यूल की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्यों ये जरूरी हो सकता है रिलोडिंग ए मॉड्यूल. सी, एक्चुअली विद मॉड्यूल देयर इज वन थिंग. Whenever you are importing your module will be imported and executed only once. If you are importing that module again, it will not give you any error, but it will not be executed. It will not be executed. तो क्या मीनिंग हुआ इसका?
इसका मतलब है कि सपोज मैंने इंपोर्ट किया, मैं या बल्कि एक और लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया हमने, ये डायरेक्टली हम ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक मैं मॉड्यूल बनाता हूँ। फाइल, न्यू फाइल, और उसमें बस मैं प्रिंट कर रहा हूँ। special message forward file is executed, और उसको मैं सेव कर रहा हूँ एक मॉड्यूल के फॉर्म में, उसको नेम दे दे रहा हूँ मैं m1, सपोज m1.py, तो मेरे मॉड्यूल का नेम m1 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जब भी आप किसी मॉड्यूल पे काम करते हैं, अगर किसी मॉड्यूल पे काम करते हैं, राइट, सो whenever you are want to use this import m1, तो अगर मैं इसको पहली बार एक्सेस करूं, if I want to use this, so if I am writing import m1, so first time ये जो आप import कर रहे हो ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है तभी तो जो आपने किया हुआ है फंक्शंस वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन if you are importing it again, see nothing is happening, तो वहां पे फिर भी आना चाहिए, दोबारा भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। Why? Because whenever you are importing your module, it will be executed only once. If in the same session, if you are importing it again, ये कोई एरर नहीं देता, but it will not execute that. इसका मीनिंग क्या है कि सपोज अगर मैंने मेरी फाइल ओपन है, मॉड्यूल फाइल मेरी ओपन है, उस समय मैंने मॉड्यूल जो ये इंपोर्ट किया, तो कोड एग्जीक्यूट का मतलब जो भी लाइन ऑफ कोड लिखी गई है उनको कंसीडर करेगा। बट सपोज फाइल मेरी ओपन रहेगी, मैंने क्लोज नहीं किया, एंड आई हैव एडेड सम मोर फंक्शनैलिटी देयर, तो ऑब्वियसली अगर दोबारा मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो होता क्या है, अगर ये मेरा रिलोड नहीं हो रहा है, मतलब ये तो एक ही बार है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो उस नए वाले कोड को कंसीडर ही नहीं करेगा। और हम यहाँ पे कंसीडर करके चले दोनों फाइल ओपन है, मेरे को फाइल क्लोज भी नहीं करनी, क्लोज करके ओपन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को दोनों, एक तरह से आप ये समझिए कि देयर आर टू टीम्स, एक दो टीम्स हैं जो दो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सपोज एक टीम एक मॉड्यूल बना रही है, सो देयर इज वन टीम, एक टीम का काम है लाइब्रेरी बनाना, एक टीम आपकी लाइब्रेरी डेवलप कर रही है। तो सपोज उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल 1.py, सपोज सो दे आर क्रिएटिंग सम लाइब्रेरी, तो कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं। सपोज उन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन की, ऐड पैरामीटर पास कर दिए, इस तरह से उन्होंने किया सब, तो कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ फंक्शंस वो डिफाइन कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए। अब अगर इसको, अब एक दूसरी टीम है जो इसको यूज कर रही है, इज अनदर टीम, सपोज उसमें जहाँ पे यूज किया जा रहा है इस मॉड्यूल के अंदर, इनको एक्सेस किया जा रहा है, उस मॉड्यूल का नाम है test.py। सो अगर उनको यूज करना है तो वो क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, दे विल यूज इंपोर्ट अ न्यू मॉड्यूल नेम। तो जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल 1 करेंगे, एंड आफ्टर दैट इफ दे आर राइटिंग मॉड्यूल 1 डॉट, तो ऑल द फंक्शनैलिटी ऐड और सब विल बी एक्सेसिबल टू यू, राइट, ये दोनों एक्सेसिबल हो जाएंगे। बट सपोज अब दोनों फाइल ओपन है, क्लोज नहीं की हमने, दोनों फाइल ओपन है, क्लोज नहीं की गई है, और यहाँ पे वी हैव एडेड सम मोर, हमने कुछ और दो फंक्शन ऐड कर दिए। सपोज कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई और दोनों फाइल ओपन है, अगर क्लोज कर देंगे दोबारा ओपन करेंगे तो हो जाएगा। बट सपोज दोनों फाइल ओपन है, क्लोज नहीं करनी फाइल, और एट द सेम टाइम अगर कुछ न्यू ऐड किया गया है, एट द सेम टाइम वी वांट टू एक्सेस इट हियर, तो आप क्या करोगे, फिर से अगर उनको चाहिए तो फिर से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल 1,
मॉड्यूल 1, लेकिन जब दोबारा इंपोर्ट करें आप मॉड्यूल को तो ये कोड को कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो पहली बार में ही करता है, तो इट मे बी द केस कि ये आपकी रिकॉग्नाइज ना हो, राइट। पाइथन 2.7 में रिकॉग्नाइज नहीं होती थी, हालांकि पाइथन 3 में ये रिकॉग्नाइज कर लेता है उसको, तो वहाँ पे रिलोडिंग की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कभी कई सारे आइडियली चल रही हैं, हो सकता है किसी इंटरप्रेटर में वो डेफिनेशन पुरानी तरीके से ही ली गई हो, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आना जरूर चाहिए। सो अब ये क्या करेंगे, अब ये इंपोर्ट मॉड्यूल 1 करेंगे और ये एक ही बार आपका लोड हो रहा है, दोबारा तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। अगर हम लिख भी रहे हैं तो एरर नहीं कर रहा, बट हो नहीं रहा, तो ये फंक्शनलिटी इसमें भी द केस ही आपको नहीं मिल रही। क्लोज करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं दोनों टीम अपरेली काम कर रही है और क्लोज नहीं करनी है फाइल, और दो पहली टीम बनाती जा रही है, इमीडिएटली हम उसको यूज कर, वी शुड बी एबल टू यूज दैट immediately. So for that purpose we need to require reloading module. Reloading module से ये दोबारा भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे reloading module? Now we will see that. अभी अगर यहाँ पे देखें, अभी ये कोड जब आपने फर्स्ट टाइम किया एग्जीक्यूट हुआ, बट सेकंड टाइम नहीं हुआ। So how can you do that? For that purpose you can use, you need to reload your module. Reload का मतलब फिर से एग्जीक्यूट करे, कंसिडर करे पूरे कोड फाइल को, जो जिससे कि जो भी रिसेंटली वहां पे ऐड किया गया फाइल में, इट कैन आल्सो बी कंसिडर अगेन। सो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं पाइथन 2.7 में हम IMP मॉड्यूल यूज करते थे। इस पर्पज के लिए वी यूज IMP मॉड्यूल, लेकिन यहाँ पे IMP यूज नहीं करते। अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे पाइथन 3 में, पाइथन 2.7 में फॉर रिलोडिंग द मॉड्यूल वी आर यूजिंग IMP मॉड्यूल, बट यहाँ पे ये नहीं करेगा काम। ये आपको एरर नहीं दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। इसने एक वार्निंग दी, क्या वार्निंग दी? सी इट इज शोइंग दैट द IMP मॉड्यूल इज डिप्रिशिएटेड इन फेवर ऑफ इंपोर्ट लिब, सी द मॉड्यूल डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे इस मॉड्यूल का नेम इन्होंने IMP की जगह इंपोर्ट लिब कर दिया है पाइथन 3 में, यही मैसेज ये दे रहा है। तो हम यही करते हैं, इंपोर्ट और लाइब्रेरी का नेम IMP की जगह इन्होंने कर दिया इंपोर्ट लिब। Now within this import lib function, there is one function reload which is used to reload your module. तो अब ये देखो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था M1, अब मैं फिर से इसको रिलोड करूं, मॉड्यूल नेम दे यहाँ पे आप, तो ये फिर से आपका रिलोड करेगा, मतलब पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये रिलोड हो जाएगा। तो सी अब एग्जीक्यूट हुआ तभी तो इसने फिर से कोड फाइल दिखा दी, इसका मतलब जो भी कोड फाइल है उस पूरे को कंसिडर किया। उसके बाद आप फिर से सब कुछ फिर से रिलोड हो गया, और फिर आप M1 यहाँ पे M1 डॉट करके जो भी फंक्शनैलिटी आप यूज करना चाहें, जो भी डिफाइन किया होगा वो आपको अवेलेबल होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलोडिंग ऑफ मॉड्यूल। पाइथन 3 में वैसे ही जैसे ही हम किसी डेफिनेशन को सेव करेंगे, सेव करके फिर यूज करेंगे, कहीं पे इंपोर्ट करेंगे तो हो जाता है हर बार। हमें वी नीड नॉट टू रिलोड इट every time, but sometime if it is showing some problem that कि नहीं दिखा रहा है, then you can reload it like this. 2.7 में तो जरूरत पड़ती है, Python 3 में ऐसा नहीं है, वो डिपेंड है कि कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा इंटरप्रेटर आप यूज कर रहे हैं। सो Python 3 बेस्ड जो इंटरप्रेटर है वहां सब में ये ऑटोमेटिकली भी ले लेता है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलोडिंग अ मॉड्यूल। मैंने यहाँ पे दिखाया है, राइट, सेम थिंग इज बीन displayed here. Now here you can see one special thing. See, whenever I am using any functionality mat.sqrt, even you can save this definition with some variable, and after that that variable will be working like function, right? इस तरह का कुछ आपने लैम्डा के साथ देखा था, यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने mat.sqrt किया and I am pointing another variable s for that, so this s will be working as sqrt function, right? So एक other alternative और different तरीका है चीज़ों को करने का पाइथन में, we can work like this also, right? But clarity के साथ रहे तो better है। ऑप्शन दिए है आपको, and कुछ functions है that can help you to know about your things. जैसे suppose if you want to know what is contained in a particular module, तो उसके लिए भी आप ये dir यूज कर सकते हैं। हेल्प मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। तो सी सपोज मैंने किया इंपोर्ट, और जो हमारा मॉड्यूल था फंक्शन एग्जांपल,
एग्जाम्पल अब यहाँ पे नहीं किया ना, एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं. एंड इफ यू देर इज वन यार, अभी तक तो अपने डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन डबल अंडरस्कोर एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट का नेम लिखा था यहाँ पे. लेकिन इफ यू आर राइटिंग ए मॉड्यूल नेम हियर और दिस मॉड्यूल नेम, सपोज आई एम राइटिंग दिस नेम जो मैंने इंपोर्ट किया है, फंक्शन एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, इसकी डिटेलिंग देगा कि क्या क्या कंटेंट कर रहा है ये. सो कुछ तो ये बिल्ट इन, ये तो प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट होते हैं जो आते हैं. ये तो प्रीडिफाइंड है जिसमें डबल अंडरस्कोर सम नेम डबल अंडरस्कोर है. एंड आफ्टर इट इज शोइंग, सो बेसिकली हियर वी हैव दिस, add1, add2, greet, kw1. so we have these members here. और इनके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग देखनी है कि एक्चुअली इनका मीनिंग है क्या. आपके कर्सर करके एंटर कर दिया ना मैंने, इसलिए आ गया. अगर इफ यू वांट टू सी द मीनिंग ऑफ दिस कि add1 ये क्या है, तो और भी डिटेलिंग चाहिए तो मैंने बताया हेल्प मैथ करके दिखाया था. इस बार बिल्ट इन पे देखते हैं. हेल्प फंक्शन एग्जांपल, इफ यू विल बी राइटिंग इट, will be writing it. So here you can see when you are executing it, it is showing all the details to you. तो जैसे मैथ के साथ के ना, तो इट शोइंग कि यहाँ पे जो है, ये जो नेम है, दिस इज योर मॉड्यूल, दिस इज योर मॉड्यूल नेम. एंड यहाँ पे इसके अंदर जो फंक्शंस है उनके नेम दिखा दिया, इसने बता भी दिया. और सी जब हमने फंक्शन डिफाइन किए थे, मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग केवल एक ही के साथ यूज की है, तो उसके साथ दिखा दिया, बाकी के नहीं. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट डॉक स्ट्रिंग. ऑप्शनल है लेकिन वो कैसे मीनिंगफुल हो सकता है आपके लिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया. तो ये सब कुछ दिखा रहा है. व्हेन इट इज शोइंग द पाथ आल्सो, कि मेरी जो मॉड्यूल फाइल है वो किस पाथ पे है, ये जो फाइल है वो अवेलेबल है कहाँ पे. सो इट इज शोइंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट योर मॉड्यूल. तो ये आप यूज कर, इन एट्रीब्यूट्स को आप यूज कर सकते हैं टू नो द डिटेल ऑफ योर. हाँ जी, yes, do you want to ask something? सर वॉइस ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है? इज इट द केस विद एवरीवन? यस सर. जी, अभी क्लियर है? राइट, सही आ रही है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर. ओके फाइन. So here we have seen this. Now we will proceed further. अब एक दो एट्रीब्यूट हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, अब उनके बारे में बात करते हैं. तो ये तो DIR हेल्प उसके बारे में बताया गया, राइट. इवन अगर आप सिंपली DIR कर दें बिना किसी पैरामीटर के यूज़ करें, तो इस करंट सेशन में जो भी मॉड्यूल यूज़ किए गए हैं ये उनकी डिटेल दे देगा. तो इस करंट उसमें जो भी मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किए हैं, इस करंट सेशन में वी हैव इंपोर्टेड दिस मॉड्यूल, दिस, जो भी यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये उनको इंफॉर्मेशन देगा. इवन सपोज अगर मैंने कोई लिस्ट बनाई होती है L1, एक कुछ फंक्शन बनाया होता, फंक्शन बना रहा हूँ, कोई फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो पास. पास क्या होता है? पास क्या होता है? एक एट्रीब्यूट. ये पास क्या करता है? पास मीन्स नथिंग. पास मीन्स नथिंग. जब भी आप पास यूज करें इट मीन्स नथिंग, ये कुछ नहीं करता. लेकिन फिर भी हम यूज करें. यहाँ पे यूज क्यों किया? क्योंकि जब हम फंक्शन डिफाइन करें, कॉलन के बाद फंक्शन की बॉडी होनी चाहिए, कि कुछ कोड तो होना चाहिए जो बताने के लिए फंक्शन क्या करेगा. लेकिन अभी यहाँ पे मैं केवल सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ इसको. I don't want to define any functionality, but still from syntax point of view there should be something in body part of this function. तो अगर आपको कभी डिफाइन नहीं करना है, बट स्टिल आपको चीज़ों को डिफाइन करना है, बट डिक्लेयर नहीं करना कि क्या फंक्शनैलिटी है, सो इन दैट केस यू कैन यूज पास. अगर लूप चला हुआ उसमें पास लिख दूँ तो एग्जीक्यूट होगा, कोड एरर नहीं देगा, बट इट विल नॉट डू एनीथिंग. इट जस्ट कि मैंने कोई टास्क दी, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट टास्क, व्हाट यू विल डू, यू कैन पास ऑन इट टू सम अदर स्टूडेंट, राइट. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो ये भी एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर रहे हैं. तो सी फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे बन गया फंक्शन, फंक्शन भी डिफाइन हो गया. अब अगर मैं फिर से इस एट्रीब्यूट को यूज करूँ यहाँ पे, सो इट विल शो यू दिस नेम आल्सो. अब यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया है ना, देखो ये वो नेम भी डिफाइन करने लग गया, L1, M1, और इवन M1 मेथड भी, और आपका ये
फंक्शंस में जो भी आपने नेम यूज किया है, इट विल शो यू एवरीथिंग हियर. सो एवरीथिंग हियर. So here we have this. Now with this we will proceed further. यहाँ पे बताया गया है और बिल्ट इन से तो हम यूज कर ही चुके हैं ऑलरेडी. अब आते हैं कुछ दो एट्रीब्यूट पे. अब इनका रिलेवेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं. आई विल शो यू दैट. देयर टू एट्रीब्यूट्स डबल अंडरस्कोर नेम. जब डबल अंडरस्कोर करके कुछ लिख रहे हैं तो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट है. तो कुछ एट्रीब्यूट्स की मैं बात करूं, डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर एंड डबल अंडरस्कोर मेन, डबल अंडरस्कोर. अब इसका रिलेवेंस क्या है, इनका रिलेवेंस क्या हो सकता है. सी, when you are working with other programming languages like C programming, C++, C#, Java, in every languages there is one entry point from where your execution will be started. और उस एंट्री पॉइंट को डिफाइन करने के लिए C++, जावा या आपके C#.NET है, इन दोज लैंग्वेजेस वी आर यूजिंग मेन फंक्शन. वहाँ पे एक मेन फंक्शन यूज करते हैं और आपका एग्जीक्यूशन हमेशा इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है. एक मेन फंक्शन वहाँ पे यूज करते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, जो कि एंट्री पॉइंट कहलाता है. एंट्री पॉइंट का मतलब है जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर आपने कैसे कॉल किया है चीज़ों को, और जो एग्जीक्यूशन है वो उसी पे बेस्ड होता है. C++, C#, तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट डिफाइन होता है. बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग देयर इज नो एंट्री पॉइंट लाइक दिस. यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं, इंटरप्रेटर है. जैसा आपने कोड लिखा है स्टार्ट से काम करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. अगर आपने फ्लो को मेंटेन करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग यूज किया, अकॉर्डिंगली वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा. तो एंट्री पॉइंट नहीं है सच को यहाँ पे. बट स्टिल अगर आपको कोई एंट्री पॉइंट सेट करना हो तो फॉर दैट पर्पज दीज एट्रीब्यूट कैन बी हेल्पफुल. हालांकि इनका पर्पज कुछ अलग है, लेकिन इस पर्पज के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. एंट्री पॉइंट बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है जो मैंने बताया ना, आई विल शो यू दैट. पहले तो इनका मीनिंग क्या है इन एट्रीब्यूट का. आई एम गोइंग टू टेक दैट पार्ट कि इनका रेलेवेंस है क्या इन एट्रीब्यूट का जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो नेम क्या होता है, नेम इज यूज टू स्पेसिफाई योर मॉड्यूल नेम. बेसिकली इट इज यूज टू स्पेसिफाई योर मॉड्यूल नेम. सो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट, मॉड्यूल नेम. तो जब भी मैं इसको यूज करूंगा, इस एट्रीब्यूट का मतलब है आपका नेम ऑफ द मॉड्यूल. ये नेम ऑफ मॉड्यूल देगा आपका जिस भी जहां पे भी आप इसको यूज करेंगे, राइट. तो वो मॉड्यूल आपका करंट मॉड्यूल हो सकता है या इंपोर्टेड मॉड्यूल भी हो सकता है. सो इट विल जस्ट गिव द नेम, एग्जैक्ट नेम ऑफ द मॉड्यूल, राइट. और डबल अंडरस्कोर मेन, डबल अंडरस्कोर क्या करेगा, it will give you the current module name in which with which you are working. जिस मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हैं, it will show you the, it will use to represent that. जब भी हम ये एट्रीब्यूट यूज करें, it means you are working with the same file, same module, current module with you are working, which you are working. So डबल अंडरस्कोर, राइट. अगर जिस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं उस मॉड्यूल का नेम देगा, ठीक है ना. और अगर इंपोर्ट करें तो भी मॉड्यूल का नेम. तो ये मॉड्यूल का एग्जैक्ट नेम देता है और ये आपके करंट मॉड्यूल को रेफर करता है. ये कॉन्सेप्ट हमने याद रखा. आफ्टर दैट नाउ, अब इसका मैं आपको एक यूज से दिखाता हूँ. सी, आई विल शो यू द यूज ऑफ इट. तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन the concept of this will be clear to you. So see, यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट करूँगा. इस फाइल में सिंपली आई एम राइटिंग प्रिंट कुछ ऐसा लिख देता हूँ फाइल नेम, और यहाँ पे यूज कराऊँ इस एट्रीब्यूट को डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर. और सपोज इस मॉड्यूल को मैं नेम दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे दो. सपोज इसको नेम दे देता हूँ मैं file1.py एंड स्टोरिंग इट इन
वो लोकेशन, सो file1.py करके हमने नेम दिया इसको। तो सी क्या आउटपुट आया जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या आउटपुट आया यहाँ पे, जो डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, अगर आप करंट फाइल में ही यूज कर रहे हैं इस एट्रीब्यूट को तो इट इज रिटर्निंग यू दैट। और इसका पर्पस क्या बताया मैंने, ये तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है कि यू आर वर्किंग विद द करंट फाइल। इसका मतलब मैंने जो एग्जीक्यूट किया वो मेरी करंट फाइल है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन इसी फाइल को अगर मैं इंपोर्ट करूं कहीं पे, अब सपोज एक और मैं मॉड्यूल बनाता हूं, यहाँ पे एक और मॉड्यूल बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने सिंपली किया इंपोर्ट file1, इंपोर्ट file1, यहाँ पे ये किया इंपोर्ट file1 किया। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, इसको मैं नेम देता हूँ, तो यहाँ पे ये फाइल इंपोर्ट करेंगे, जैसे इंपोर्ट करेंगे आपका पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा इस फाइल पे, और उस फाइल के अंदर जैसे भी कोड लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो पहले तो इसको सेव करते हैं और उसको मैं नेम दे देता हूँ file2, file2.py। तो सी जब मैं करंट फाइल पे काम किया, जब मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूं, व्हेन आई एम वर्किंग विद दिस फाइल, तो सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम वर्किंग विद द करंट फाइल, बाकी सबको उनको मिनिमाइज कर देते हैं। व्हेन आई एम वर्किंग विद दिस फाइल file1.py, जब मैंने इस एट्रीब्यूट को एग्जीक्यूट किया, दिस डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज गिविंग यू दैट। और इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया, द मीनिंग ऑफ दिस इज इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, this attribute is used to specify current module with which you are working, right? It is showing you that, यही मीनिंग था इस एट्रीब्यूट का, ठीक है। नाउ बट जैसे ही मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट file1, तो मैंने एक दूसरी फाइल इंपोर्ट किया। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया इसको, तो ऑब्वियसली जिस इंपोर्ट किया इट विल पाइथन इंटरप्रेटर विल लुक फॉर डेफिनेशन ऑफ दिस file1, और file1 है वहां पे इसको मिली, file1 गया तो यहाँ पे चला गया पॉइंटर, और फिर इस लाइन पे आ गया, इस लाइन को इसने एग्जीक्यूट किया। लेकिन अब इंपोर्टेड फाइल को जब इंपोर्टेड फाइल के थ्रू अगर जब एग्जीक्यूट किया गया, तब इस नेम एट्रीब्यूट ने क्या नेम दिया, आपके मॉड्यूल का। इसका मतलब है कि ये जो अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये इंपोर्टेड फाइल के साथ काम कर रहा हूँ मैं, करंट फाइल के साथ नहीं। यहाँ पे इसने इस नेम को दिया, से हमें पता लग रहा था कि यहाँ पे मैं करंट फाइल के साथ ही काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट ने मॉड्यूल का नेम दिया आपको। इसका मतलब यू आर वर्किंग विद द इंपोर्टेड फाइल। ये जो कोड यूज किया गया, इंपोर्ट करके किया गया, ये आइडिया यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इन एट्रीब्यूट से, राइट। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका एक थोड़ा सा और एलोबरेट करके अगर हम इस कोड को देखें कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ऐसा यूज करूं, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं file1 is being run directly, इस सेम फाइल पे हम काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, if it is not the case, else तो मैं मैसेज करता हूँ यहाँ पे प्रिंट फाइल इज बीइंग इंपोर्टेड,
तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये मेन के इक्वल कब होगा, अगर मैं करंट फाइल के साथ काम कर रहा हूँ। नेम आपको रन करता है, ये रिटर्न करता है अगर आप करंट फाइल के साथ काम कर रहे हो। अगर इंपोर्टेड फाइल है तो वहां पे इसकी वैल्यू file1 हो जाएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो सी अभी मैं करंट फाइल के साथ ही काम कर रहा हूँ, मेरी फाइल जो है दैट इज file1.py। अभी मैं इसी फाइल के साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अभी करंट फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? ये तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? कौन सा मैसेज आएगा? file1 is being run directly या file1 is being imported? What will happen? हाँ जी, फर्स्ट वाला मैसेज है। बिल्कुल, बिकॉज एज यू नो हियर इट विल गिव यू डबल अंडरस्कोर में डबल अंडरस्कोर। तो जब हम कंपेयर करें, अगर करंट फाइल पे काम करें तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और ट्रू है तो एंटर कर जाएगा, इट विल डिस्प्ले फाइल इज बीइंग रन डायरेक्टली। सी, सो इट इज शोइंग फाइल इज बीइंग रन डायरेक्टली। लेकिन अब अगर मैं दूसरी फाइल पे जाऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट करेंगे तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे चला जाएगा इस पे, और इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं अब इस वाली file2.py को एग्जीक्यूट करूं, इसको एग्जीक्यूट करूं, तो क्या आउटपुट आया आपका? अब फाइल, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई file1, तो ऑब्वियसली ये एट्रीब्यूट हो गया फॉल्स जब मैं दूसरी फाइल पे हूं, राइट? एंड इट इज शोइंग फाइल इज बीइंग imported. I hope you are getting the meaning of this double underscore name double underscore and double underscore main double underscore when you are working with current file and when you are working with imported file. जहाँ पे imported file means जहाँ पे import किया गया है मॉड्यूल को। I hope you are getting some idea about these attribute कि क्या कर रहे हैं attribute students। अब now with this knowledge अब we will have a look at our PPT। अब ये स्टेटमेंट जितनी भी यहाँ पे अब आपको समझ आते चले जाएंगे। So see, we will have a look at it। So अभी एंट्री पॉइंट का भी अब यहाँ पे लेंगे, एंट्री पॉइंट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसका भी एक एग्जांपल लूंगा। So since there is no main function in Python, when the command to run a Python program is given to interpreter, the code is at level 0, indentation is to be executed। Actually main बाकी लैंग्वेज में एंट्री पॉइंट को डिफाइन करने के लिए होता था। एंट्री पॉइंट मतलब फ्रॉम वेयर यू विल योर एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस, आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी लैंग्वेज में मेन फंक्शन डिफाइन करके करते हैं कि मेन में जैसे कॉलिंग करते हैं कोड उसी तरीके से आपका एग्जीक्यूट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। बट इन पाइथन प्रोग्राम यू डोंट हैव दैट, so that is why we have written it। Since there is no main function, or you can say since there is no entry point in Python, there is no specific entry point in Python like main। When the command to run a Python program is given to the interpreter, the code that is at level 0, start में जो है zero indentation is to be executed। However, before doing that, it will define a few special variable। So double underscore, अभी attribute special variable की बात करते हैं, जो built-in attribute है, double underscore name double underscore and double underscore main double underscore। So double underscore name double underscore is one such special variable। If the source file is executed as the main program, the interpreter set this attribute variable to this value। If this file is being imported from another module, this double underscore name double underscore will be set to the module name। वहाँ पे उस module का specific name देगा, ना कि ये value। So basically this double underscore name double underscore, it is a built-in variable, built-in attribute we can say, which evaluates to the name of the current module। Thus it can be, और current module में इसकी वैल्यू होगी डबल अंडरस्कोर में डबल अंडरस्कोर, इंपोर्टेड में मॉड्यूल का नेम ही देगा। Thus it can be used to check whether the current script is being run on its own or being imported somewhere else by combining it with if statement as we have seen। So अब इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एंट्री पॉइंट के लिए। I'll take one example। Suppose मैं एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ, यहाँ पे हमको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और यहाँ पे ही है। So see, suppose I am defining very special and very simple function। एडिशन का एक फंक्शन बना रहा हूँ, सिंपल 2 नंबर के एडिशन का एक फंक्शन कर रहे हैं, और डायरेक्टली अब तो हम लिख सकते हैं यू आर फैमिलियर विद दिस, रिटर्न a प्लस बी, ये रिटर्न करें इनका एडिशन, राइट। सो आई एम डिफाइनिंग इट। तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, एंड आई एम नाउ मेकिंग यूज इन द सेम फाइल, यहाँ पे मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग इट, और आई एम कॉलिंग इट विद सम मैसेज प्रिंट, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू,
और इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो मैंने कॉल किया और आई एम पासिंग सम वैल्यू किया, सपोज आई एम पासिंग 10 20। व्हेन आई एम एक्सिक्यूटिंग इट, सपोज इसको मैं नेम दे देता हूँ file3.py, so it is showing result equals to 30, right? अब मैं क्या करता हूँ, what I will do, अब मैं यहाँ पे एक और, here I will be creating another file, अब एक और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज करता हूँ। Here I am using another, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उस फाइल को, इंपोर्ट file3, और यहाँ पे भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ बट विद सम डिफरेंट मैसेज। यहाँ पे मैसेज कुछ मैं ऐसा दे रहा हूँ, द रिजल्ट फ्रॉम एडिशन यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ऐड, और यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू पास कर रहा हूँ। ओके टेल मी, अभी ये जो कोड है क्या काम करेगा यहाँ पे? अभी ये कोड काम करेगा या कुछ मेरे को ऐड ऑन करना है इसमें? अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया उसके अकॉर्डिंग क्या कोई चीज मिसिंग तो नहीं है? एक मॉड्यूल की फीचर को मैं दूसरे मॉड्यूल में यूज कर रहा हूँ। Do we have to do file3 dot? File3 dot add. We have to do it like that. यस, सी डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हाँ, इसको अगर मैं फ्रॉम करके करता तो लिख सकता था, लेकिन मैंने इंपोर्ट ही लिखा है, तो इंपोर्ट करके लिखा है कोई मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल की फीचर को अगर आप एक्सेस कर रहे हो, इस मॉड्यूल के अंदर ये ऐड फंक्शन था file3, तो आपको ये मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा। बाकी आप दूसरी अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सो हियर आई एम यूजिंग इट। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, इसको एग्जीक्यूट किया तो ऑब्वियसली इसने आउटपुट दिखाया रिजल्ट इक्वल्स 30, इट वाज वर्किंग फाइन। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, और उसको मैं नेम दे देता हूँ file4.py, इसको नेम दे देते हैं file4.py। सो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग, सी व्हाट इज हैपनिंग, एज कोई एंट्री पॉइंट नहीं है यहाँ पे। एंट्री पॉइंट ना होने की वजह से क्या हुआ, जैसे आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे आया तो उस पूरे कोड को कंसीडर करेगा, तो फंक्शन के डेफिनेशन को भी लिया, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन किया आपने पहले उसको दिखाया। पहले ये वाला कॉल हुआ तो रिजल्ट इक्वल्स टू 30 आया, फिर ये इस फाइल पे फिर से आ गया, इस लाइन पे आ गया, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है उनको दिखाया। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो इसको कंसीडर करे, बट इफ आई एम वर्किंग विद अनदर फाइल जहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस समय मैं नहीं चाहता कि इसकी जो कॉलिंग है यहाँ पे भी काम करे। पहले मैं चाहता हूँ केवल ये कॉलिंग काम करे यहाँ पे। आई डोंट वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट इक्वल्स टू 30 इन द केस ऑफ इंपोर्टेड फाइल। हाँ, सेम पे कर रहे हैं तो करना है, लेकिन अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इंपोर्ट में जिस तरीके से मैंने इंपोर्ट किया केवल उसी को कंसिडर करना है, इसको कंसिडर नहीं कर, इस वाली लाइन को अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कंसिडर नहीं करना। तो भी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंट्री पॉइंट जैसा कुछ है नहीं, तो कैसे सेट करेंगे? अब कॉन्सेप्ट जा चुका है वैसे आपके पास, तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे कि अगर इफ आई वांट दैट समथिंग, इफ आई एम डिफाइनिंग एंड कॉलिंग इट एंड आई वांट to consider that this calling should take place only if I am working with this module, with this current module. It should be considered with that. It should not be considered, this calling should not be considered when we are importing this file and trying to access any feature contained by this module file. उस समय वो consider ना हो, calling वाला code consider ना हो, बाकी हो केवल definition का। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? You can control by using this attribute, वही attribute जो हमने यूज किया था। उस लाइन को जो मैं केवल इस फाइल के लिए लिखना चाहता हूँ, आई कैन कंट्रोल लाइक दिस, राइट। सो इतने से भी काम चल जाएगा हमारा, एल्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो सी क्या होगा, तो ऑब्वियसली जब हम इसको करेंगे इस लाइन पे, इसका मतलब है कि इफ आई एम वर्किंग विद करंट मॉड्यूल देन ओनली दिस एट्रीब्यूट विल बी ट्रू, देन इट विल एंटर हियर एंड ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड। बट इफ आई एम इंपोर्टिंग, तो ऑब्वियसली इंपोर्टिंग के टाइम पे ये जो एट्रीब्यूट है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो एंटर ही नहीं करेगा, तो कंसीडर ही नहीं होगा। तो सी
अगर मैं अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं तो इसको कंसिडर करेगा, बट अगर मैं इंपोर्टेड फाइल में यूज कर रहा हूं तो ये वाला जो कोड, लाइन ऑफ कोड है, ये इग्नोर हो जाएगी, केवल इसी को कंसिडर करेगा, क्योंकि जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं ये एट्रीब्यूट फॉल्स हो जाएगा तो केवल इसी लाइन को करेगा। तो हमने एंट्री पॉइंट अपने तरीके से सेट कर दिया है एक तरीके से। सो ये वहां पे भी हेल्प कर सकता है। तो आई होप यू आर गेटिंग द रेलिवेंस ऑफ दिस एट्रीब्यूट and how can you make use of this to specify some kind of entry point. Are you getting this thing now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। So now, so this is about module. So you know that what is module. Obviously जो भी फाइल हमने अभी तक क्रिएट की है पाइथन में फ्रॉम सेशन, फ्रॉम स्टार्ट सेशन टू दिस सेशन, वो सब मॉड्यूल्स हैं। जितने भी .py फाइल है वो सब हमारे मॉड्यूल हैं, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोड को ऑर्गेनाइज किया गया इन टर्म्स ऑफ दिस फाइल, राइट। एंड आफ्टर दैट यू नो दैट हाउ कैन वी import our module in different ways, कई तरीके हैं उसको एक्सेस करने के लिए। एंड यू नो दैट कि कैसे आप, इफ यू आर डिफाइनिंग योर मॉड्यूल इन एनी different directory from search path directories, how can you associate it with search path, and so that it can be considered, it can be recognizable by our Python interpreter. You know that, you know the meaning, importance of Python path environment variable to set the directories, to associate your any directory with your search path directories, to make it recognizable for your interpreter. And after that, you know that how can we make, you have additionally you have seen the usage of this नेम और मेन। और अगर मेरे को मॉड्यूल वगैरह को देखना है क्या है मॉड्यूल के अंदर क्या नहीं, उस तरह की चीज़ों को मैनेज भी करना है, तो आप कुछ बिल्ट इन फंक्शंस dir हेल्प, यू हैव सीन द यूसेज ऑफ दोज आल्सो, राइट। और मॉड्यूल का, मेरे मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है सब कुछ अगर वो भी देखना हो तो उसका भी आपको पता है, हेल्प में आप लिख देंगे मॉड्यूल तो उसका पूरा वो आपको दिखा देता है कि क्या कंटेंट है उसके अंदर, राइट। सो वी हैव दैट थिंग आल्सो। So now with this, now next we will be discussing about package, but we will be taking this Python package concept after a short break. तो एक break ले लेते हैं, it's 11:18, so we will continue our session at 11:35. Till then you can have a break. 11:35 पे continue करते हैं session. Thank you, sir. Thank you, sir.
Okay, students, I'm back. So here we are continuing our session. So I'm sharing my screen first. Okay, sir. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you now. Yes, sir. So next concept is package, Python package. So what is the meaning of package? Why we use it? So Python package is nothing. It's just one more hierarchical level to manage your code. See, if we have several functions, classes, we can manage these in the form of module. But it may be the case we have several modules also. It may be the case we are having several hundreds of module, and even in these hundreds of module, some modules are logically related in some way and some other module are logically related in some other way, right? So how can you manage, how can you organize your modules even? So to organize your modules, to manage your modules, we can use Python package. So Python package, nothing, it's a folder, it's a directory within which you can put all the logically related module. But it is a special folder. It is a special folder because it is being treated as a package. अब इसको special क्या होगा, normal folder जो हम बनाते हैं अपने computer system में, उससे अलग क्या हमें करना होगा, so that it can be a special folder and it can be treated as a package. Right. So now we will be taking that part. So basically हम किसी भी project पे काम करते हैं ना, तो if I am dealing with various large number of packages, then you can use of large number of modules, then we can make use of packages. अगर मैं limited module पे काम कर रहा हूँ तो without package भी हम काम कर सकते हैं. तो so use of package is not mandatory, it just depending on your choice. क्योंकि कोई project है, if you are dealing with large project, suppose a gaming related project है. So in gaming related project, it may be the case we can have various modules. Some modules are related with sound functionality. There we can have load, play, pause kind of thing. Something we can have some graphics related modules like open, change, close, and we have some other to define the level of the game. We have some modules like start, load, over anything. So we have various modules. So we can organize. एक option तो है कि आप इन modules को ऐसे ही use करें, normal folder के अंदर रहे और उनको जैसे अब तक यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द सेम अप्रोच टू वर्क ऑन इट. लेकिन इसको भी अगर मैं ऑर्गेनाइज कर दूं थोड़ा सा बेटर वे में, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ पैकेज. तो पैकेज क्या है? पैकेज इज नथिंग, इट्स अ स्पेशल फोल्डर विद इन विच यू कैन कंटेन मॉड्यूल्स. इवन ऐसा भी हो सकता है, सी इन नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में भी हम क्या करते हैं कि वी आर वर्किंग विद इन नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम वी हैव फाइल्स एंड टू मैनेज अवर फाइल्स वी आर क्रिएटिंग फोल्डर. बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फाइल्स है, दिस फाइल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दिस फाइल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट. सम फाइल्स आर सपोज रिलेटेड टू द some are audio files, some are video files, and some are suppose software programs. Even जब ये audio files, video files है, even suppose video files में भी we are having videos related to the movies, we have videos related to the documentary, we have videos related to the video lectures on some subjects, on some domain, right? So further हम क्या करते हैं फिर इस तरीके, उनको भी further manage कर सकते हैं. तो we can create another, we can create folder, within folder we can create subfolder, right? And then we can put the files. So ये जो folder जिसको हम directory भी कहते हैं, we are creating directories, sub directories. So similarly we can have package, and within package we can have sub packages also. Sub package is nothing, it's a package contained within another package. तो sub package भी package ही है, right? So here अगर आप देखें एक organization use किया गया कि here we have created one package game and within this package we have created 3 sub package. तो basically ये भी package ही है, बस difference इतना है, ये package आपके किसी दूसरे package के अंदर है, right? That is why we are using this term sub package, like directory, sub directory हम use करते हैं generally. And with after that these sub packages are containing modules. Basically packages are used to organize your modules. You can store modules within package. और ये एक special package is nothing, it's a folder, एक special folder है because to treat any folder, to treat any directory as a package or sub package,
it must contain one file named $init_.py. ये फाइल उसके अंदर होनी चाहिए डायरेक्टरी के अंदर, तभी only then that directory will be treated as a package. अदरवाइज सिंपल फोल्डर रह जाएगा और पैकेज की जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेंगे. क्या बेनिफिट है, क्या आपका यहाँ पे हाउ कैन यू हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स फर्दर, वी विल आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. सो हियर वी आर fitting. Suppose here we have various modules, सब modules हैं, right? अब इनको अगर मेरे को मैनेज करना है तो अब मैं इनको पैकेज की तरह मैनेज करूंगा, right? And there is one more thing here, जो अगर आप यहाँ पे देखें, one file is created this _pycast _, ये एक फाइल क्रिएट हुई है यहाँ पे, right? अब इस फाइल का मीनिंग क्या है, ये जो फाइल क्रिएट हो गई है आपकी, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है pycast. इस फाइल का रिलेवेंस क्या है, whenever, तो कब क्रिएट होती है, whenever you are importing any module first time, जिन भी मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया होगा, whenever you are importing any module first time, this file will be created automatically and this file contains your compiled version of your Python code file, एक जिसका एक्सटेंशन होता है .pyc. तो जैसे मैंने बताया था ना कि Python is not, यहाँ पे कहते हैं जनरली हम बोलते हैं Python is interpreted, बट एक्चुअली इट इज हाफ ट्रू, बिकॉज जब आप किसी भी मॉड्यूल को फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करें तो उसका कंपाइल्ड वर्जन भी आपको मिल रहा है जिसका एक्सटेंशन होता है .pyc. तो यहाँ पे जिन भी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया ना फर्स्ट टाइम, व्हेनेवर यू आर इंपोर्टिंग एनी मॉड्यूल फर्स्ट टाइम, इट विल क्रिएट pyc ऑफ दैट आल्सो. py तो है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज आल्सो पॉसिबल दैट वी कैन यूज पाइथन विद इन कंपाइल्ड इन्वायरमेंट आल्सो. आप जावा इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट विद इन विजुअल स्टूडियो आल्सो, जहाँ पे डॉटनेट का एनवायरनमेंट होता है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, तो विजुअल स्टूडियो एनवायरमेंट के अंदर भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं. सो ये एक एडिशनल चीज है कि ये, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है. ठीक है, अब आते हैं पैकेज पे. तो मैं क्या चाहता हूँ, अभी ये जो मॉड्यूल है डायरेक्टरी है, इनको मैं पैकेज के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कुछ मॉड्यूल को कॉपी कर लेते हैं. सपोज एक मॉड्यूल मैंने कॉपी कर लेता हूँ, अभी एक फोल्डर बनाते हैं, इसको मैंने दे देता हूँ सीडैक. इसी को मेरे को पैकेज की तरह ट्रीट करना है. अभी ये सिंपल फोल्डर है एंड इट इज योर पैकेज में कंटेन वेरियस मॉड्यूल्स. तो एक मॉड्यूल मैंने कर दिया, वहां पे भी फंक्शन एग्जांपल नेम है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे इस केस में करता हूँ फंक्शन एग्जांपल 1, राइट? अभी ये सिंपल फोल्डर है. टू ट्रीट एनी फोल्डर एज इज पाइथन पैकेज इट मस्ट कंटेन वन फाइल. तो मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को नेम देंगे आप $_init. इसका इनिशियलाइजेशन करती है बेसिकली $_ और एक्सटेंशन होगा .py. कोई कोड वगैरह हम नहीं यूज करते हैं इसके अंदर, ये जस्ट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए फाइल. अब ये जो फोल्डर है सीडैक, इट विल बी ट्रीटेड एज ए पैकेज, और उससे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं अपनी चीजों को. हाउ सी, अब अगर मैं आइडियली ओपन करूं यहाँ पे, ये तो दिया हुआ हमने, ठीक है. यहाँ पे इफ आई एम ओपनिंग माई आइडियली फाइल, यहाँ पे एक ऑप्शन है पाथ ब्राउजर, और अगर आप यहाँ पे देखें जो आपने ऐड किया है ना, यही है हमारी डायरेक्टरी सैंपल कोड. इफ यू सी इट इज शोइंग सीडैक पैकेज, और इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो आई कैन सी, अगर मैंने बहुत सारे मॉड्यूल कंटेंट किए, यू कैन सी द नेम ऑफ मॉड्यूल कंटेंट बाय दिस. इवन इफ यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ मॉड्यूल, यू कैन सी फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे इस हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज कंटेनिंग दिस फंक्शन, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे आप जाना है, इस फाइल पे ही जाना है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर दो तो फाइल ही ओपन हो जाएगी. इस तरह से आपका ऑर्गेनाइज करने में ही हेल्पफुल है. अब अगर मेरे को इनको यूज भी करना हो यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? सो टू एक्सेस द एनी फंक्शन contained by a particular module and if that module is within a package, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, import your package name, हमारे केस में CDAC है, और उसके बाद एक बार लिखना पड़ेगा import package name dot your module name. module name है हमारा function example. एक क्या किया, नो module name CDAC dot function, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की हमने? सर एग्जाम्पल 1 लिखा. ओह यस, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. हमारे फंक्शन का नाम है फंक्शन एग्जाम्पल 1, तो बिल्कुल सही आया. तो सी इट इज इम्पोर्टेंट. सो
अब एक बार लिखा, अब आप केवल सी भी टाइप करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार दबा दो तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ये सी डैक डॉट डॉट करते जितने भी मॉड्यूल होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और डॉट करते यहाँ पे करेंगे जो भी फंक्शन है वो आपको मिल जाएंगे। तो काम आपका उसी तरीके से हो रहा है। अगर आप यूज करें कोई भी फंक्शन जो भी आपने डिफाइन किए हैं, यू विल बी गेटिंग दोस, और जो भी फंक्शनैलिटी एज पर द फंक्शनैलिटी दे विल शो यू द आउटपुट। जैसा सॉरी कॉमा भूल गए यहाँ पे। तो पैरामीटर की डिमांड कर रहा है ये, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस फीचर वैसे भी मिलेगी जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पे। सो एज पर दिस, सो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द फीचर ऑफ इट। तो इट इज वन ऑल्टरनेटिव दैट कैन हेल्पफुल फॉर यू। तो इसलिए जब पाइथन लाइब्रेरी बोलते हैं ना, पाइथन में जब भी हम वर्ड यूज करें पाइथन लाइब्रेरी मींस कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस एंड मॉड्यूल, राइट। सो अगर एक टोटल ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना है यहाँ पे, वैसे मैंने फर्स्ट सेशन में भी इसको बताया था आपको, एक बार यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं उस टास्क को। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह, और हाँ यहाँ पे मैंने सब पैकेज नहीं बनाया, और यहाँ पे भी देखो पाई कैश बन गया, जैसे मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया ना फर्स्ट टाइम, यहाँ पे भी एक पैकेज बन गया। सब पैकेज नहीं बनाया, सब पैकेज नथिंग, सिंपली आप इसके अंदर एक फोल्डर कंटेन करके करते, एक और लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे एक्सेसिंग में। तो इस तरह से आपको, तो उसके इसमें जो आपका एक्सेसिंग होती है ना, कुछ ऐसे होती। अभी क्या किया हमने, जब भी इंपोर्ट करेंगे तो आप लिख रहे हैं पैकेज नेम, अगर सब पैकेज होता तो सब पैकेज का नेम लिखते पहले, और सब जब भी हम पैकेज वर्ड यूज करें उसके अंदर ये फाइल जरूर होनी चाहिए, डबल अंडरस्कोर आइडेंटिटी डबल अंडरस्कोर पैकेज नेम डॉट सब पैकेज नेम इफ देयर इज एनी, आफ्टर दैट डॉट मॉड्यूल नेम, जो भी मॉड्यूल पे आपको एक्सेस करना है, उसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शन या क्लासेस जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं। तो यू नीड टू स्पेसिफाई फुल्ली क्वालिफाइड नेम। और बाकी जो इंपोर्ट करने का जो तरीका है बताया था ना मेरे मॉड्यूल के साथ, वो तरीके भी आप इनके साथ यूज कर सकते हैं, राइट। वो भी आप यूज कर सकते हैं, कि क्योंकि यहाँ पे बड़ा लंबा सा नेम हो जाता है ना। इंपोर्टेड आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप दूसरे अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, कि फ्रॉम दिस ऐसे करके, या फिर दूसरा रीनेमिंग वाला भी कर सकते हैं, फ्रॉम दिस एज आप कुछ भी नेम दे दो एम, तो ये अप्रोच भी आपकी यूज होगी। एम डॉट करेंगे तो सी मिल गए फंक्शन, तो एवरी टाइम आफ्टर दैट ये आपको पूरा कंप्लीट भी टाइप करने की जरूरत नहीं, तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दोज फीचर्स आल्सो जो एक्सप्लेन की गई है प्रीवियसली। सो अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बेसिकली ये एक्सेसिंग का बताया कैसे एक्सेस करना है। जैसे यहाँ पे बताया था ना, पैकेज, ये पैकेज नेम है, सब पैकेज नेम है, मॉड्यूल नेम और मॉड्यूल के अंदर फंक्शन। सो बेसिकली एक जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है ना कोड का मेरे पाइथन में, सो हियर इट इज लाइक दिस। सो यूज ऑफ पैकेज एंड सब पैकेज इज ऑप्शनल, बट अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो कोड का पाइथन में होता है, जस्ट वी हैव पैकेज, पैकेज में कंटेन सब पैकेज, it may contain any number of sub package, nothing, these are just packages contained within another packages. And these packages may further contain various module. These sub package, any particular package may contain any number of module. It will contain various module. And any particular module may also contain various
further member. It may also contain various other feature, like it can be your it can be your simple Python statement जो हमने इनिशियल सेशन में किए थे फंक्शन से पहले. Simple Python statements, variables, types, expressions, variables, expressions. What may contain functions, and may contain classes. Sir, I had a doubt. हाँ बताइए. So just for simplicity's sake, let's just assume within a package there are just two modules. And let's say within each module there is a file with the same name. So like in module 1 there's a file named file1 which has some function. Module 2 also file1 with a different function. How do I, like, let's say if I'm within file1 and I create a new file which I'm working on, and I want to use the function in the second module which I'm not currently in. How does the program distinguish between which file I want to access? So basically, whenever you are referring file with before file, you will specify module name to avoid this name confliction. क्योंकि module name भी बताएंगे ना आप, तो फिर वो उसी specific file को करेगा. Directly उस file name को नहीं specify करेंगे उस केस में हम. Okay, so we'll almost like path देना पड़ेगा. हाँ हाँ, मॉड्यूल में हम एलियासिस भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली हम मॉड्यूल नेम लेके भी चल सकते हैं, राइट. दैट अप्रोच यू कैन यूज. उस केस में जो ये हमारा फ्रॉम वाला जो अप्रोच है ना, इट विल नॉट बी गुड, क्योंकि इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ नेम कॉन्फ्लिक्शन, राइट. नेम कोलिजन हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा ना कौन सा. जो प्रॉब्लम की बात की है, तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे करेंगे, तो ये भी एक पर्पज है इनको डिफाइन करने का, कि मॉड्यूल के फॉर्म में डिफाइन करने का, कि आप मॉड्यूल नेम के थ्रू करेंगे तो हमें स्पेसिफिकली पता लग जाएगा कि कौन सी फाइल है. आर यू गेटिंग? सो सेम लाइक जो डॉट नोटेशन आपने शो किया था वैसे ही, बट मॉड्यूल नेम एंड देन एलियास यूज कर सकते हैं. यस, यू कैन यूज. थैंक यू सर. ये एक तरीके से उस तरह ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं थोड़ा सा एनालॉजी यूज करूँ ना, जस्ट लाइक दैट कि सी प्लस प्लस में जो हैश इंक्लूड करके आप लिखते हो, या जावा पर्सन जो है जावा में पैकेजेस का यूज़ किया जाता है, या जो डॉटनेट पर्सन है सी शार्प वगैरह, वहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे इन टर्म्स को हम यहाँ पे पैकेज और मॉड्यूल बोलते हैं पाइथन में, राइट. तो है वही कोरिलेशन में. ठीक है सर. अब okay, so here your module may further contain various types in Python, like these can be your simple Python statement, function और classes. और functions की भी जब हम बात करें तो functions की भी मैंने बताया था predefined भी हो सकते हैं, user defined. predefined में भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, built-in functions और built-in function और जो module के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं. सिंप्लिसिटी के लिए मैं बस दो ही लिख देता हूँ यहाँ पे, built-in functions, built-in functions हो सकते हैं, और ये मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हो सकते हैं. And when we are talking about class, we will be further we will be working with this class. So ये जो क्लासेस हैं आपकी, वन क्लास में फर्दर कंटेन वेरियस मेंबर्स, तो इसकी बात हम डिटेलिंग में करेंगे. बट जस्ट अब यहाँ एक पूरी कोड हायरार्की हम ले रहे हैं, तो I would like to mention names also. So your class may contain various variables. It may contain various other members, like it may contain methods. Functions defined within class are known as methods. It may contain various other special members also, like constructor, destructor. Don't worry about these names at this time. जब हम Python और Python class और object की बात करेंगे, object oriented programming sessions को लेंगे, then we will be discussing about these also.
in detail. So basically ये एक ओवरऑल हायरार्की है, कोड हायरार्की है, कोड मैनेजमेंट है पाइथन के अंदर जो यूज करते हैं, राइट. So these types are managed in the form of module, and your modules are managed in the form of package and sub package. Now I'll give you one exercise which will be based on this thing, but before that I will like to discuss one more concept, क्योंकि उस exercise में थोड़ा file based मैंने exercise बनाई हुई है, तो file का concept होना चाहिए. तो today I am taking little bit overview of the file. How can you work, what is the meaning of file, how can you work with a particular file. बाकी डिटेलिंग में हम कल बात करेंगे फाइल की, जब आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे मॉड्यूल पैकेजिंग से. सो नाउ नेक्स्ट. हाँ बताइए. यस टेल मी. इनिट फाइल कैसे बनाइए? सिंपल, या तो आप आइडियली से बना लो, या मैंने तो यहाँ पे नोटपैड फाइल ले लो कोई भी. ये तो मैंने तो इसी तरह से बना दिया कि नेम दे दिया $_INIT $_ और .txt की जगह .py. ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन .py होना चाहिए. और सर इसमें कुछ लिखना नहीं होता? नहीं कुछ नहीं, बस ये चाहिए इनिशियलाइजेशन के लिए है बस. ये कभी कभी अगर लिखना भी पड़ जाए ना, तो इसमें हम केवल इंपोर्टिंग का कोड लिखते हैं, राइट. जनरली हम कुछ करते नहीं इसके अंदर, ठीक है ना. लेकिन हाँ, अगर इस फाइल को नहीं करेंगे हम, तो फिर ये सीडैक एक फोल्डर ही रहेगा, पैकेज नहीं होगा, पैकेज की तरह ट्रीट नहीं होगा. ठीक है. सो विद दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव ए लुक एट द पीपीटी. इनका एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट, कुछ बस तो नहीं गया कोई फैक्ट. ओके, सो हियर यू कैन सी. So Python package. So we don't usually store all of our file in our computer in the same location. We use a well-organized hierarchy of directory. Directories means folders. We use a well-organized hierarchy of folders for easier access. Similar files are kept in same directory. For example, we may keep all the songs in the music directory that we can create. Analogous to this, Python has packages for directory and modules for files. So as per our requirement, if our application program will grow in size, right, we are using more several large number of module, then to manage those we can use package, right. So as our application program grows larger in size with a lot of modules, we place similar modules in one package and different modules in different package. Means logically related module को हम एक place पे रख सकते हैं. So this makes a project in the form of package. So this makes a program easy to manage and conceptually clear. So similar as a directory can contain subdirectory and files, a Python package can have subpackage and modules. And when you are working with Python package, when you are creating Python package, a directory here must contain a file name $_INIT $_.py in order for Python to consider it as a package. नहीं तो normal folder, normal directory होगी. This file can be left empty, but we generally place the initialization code for that package in this file. Initialization मतलब हम importing वगैरह का कोड लिख सकते हैं, import बस import की फाइल. So suppose we are developing a game, one possible, okay, ये तो हम कर चुके हैं. Just for example, और एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे? तो import में आप पैकेज नेम, सब पैकेज नेम और मॉड्यूल नेम. जब ये import हो गया तो उसके बाद फिर जो भी इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शनैलिटी होंगी, you can access those, right? और यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज करे इंपोर्ट के बाद जो भी लिख रहे हैं, तो sys.path का पार्ट होना चाहिए वो डायरेक्टरी जहाँ पे आपने प्लेस किए अपने पैकेजेस को. ठीक है, तो सेम वो पाइथन पाथ के थ्रू हम कर सकते हैं. तो while importing packages, Python looks in the list of directory finding sys.path, similar as for module search path. तो उसका भी ध्यान रखेंगे. This is the code hierarchy of this. So now next we are going to discuss about file. What is file? What will happen if you don't have the concept of file in our computing world? क्या होता है फाइल, क्या जरूरत होती है फाइल की? अगर फाइल का कॉन्सेप्ट ही ना हो हमारे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में, हमारे आईटी वर्ल्ड में, तो क्या होगा? How can you define a file? What is a file? पर्पज क्या होता है फाइल क्रिएट करने का? क्यों क्रिएट करते हैं फाइल? ऑर्गेनाइज करने डॉक्यूमेंट्स. हाँ, डॉक्यूमेंट जो बना रहे, क्यों बना रहे हो? क्योंकि सर ऑर्गेनाइज करने के लिए.
The data से Storage. स्टोरेज, यस. सो अब अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो इन कंप्यूटर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन वी यूज मेमोरी, राइट. मेमोरी को भी हम देखें तो टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर देयर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, राइट. प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, तो फॉर दैट पर्पज वी यूज रैम. बट एक्चुअली रैम के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो मेमोरी यहाँ पे भी रैम भी मेरी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी रैम भी मेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है रैम के साथ. क्या? वोलेटाइल होती है. हाँ, वो वोलेटाइल है. वोलेटाइल का मतलब कि जब हम काम कर रहे हैं, मेरा कंप्यूटर स्विच ऑन है, सो इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन दैट मेमोरी, इन दैट मेन मेमोरी. बट मोमेंट वी आर टर्निंग अवर सिस्टम ऑफ, जैसे स्विच ऑफ होगा मेरा सिस्टम, then whatever information you have stored in that RAM, in that main memory, it will be gone, it will be erased because of volatile nature of this primary memory, right. So for that purpose, to store our information permanently so that we can use it, we can get this information again, we use secondary memory. तो उसके लिए हम secondary storage use करते हैं, right. तो उसके लिए हम हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सब पिक्चर में आता है हमारा, SSD वगैरह हम यूज कर सकते हैं. लेकिन अब सेकेंडरी स्टोरेज में भी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे हम? वी विल स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फाइल. तो फाइल का मतलब क्या है? बेसिकली फाइल क्या बताता है आपको, फाइल का पर्पज क्या हुआ? फाइल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई योर इंफॉर्मेशन. नेम भी देंगे हम. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई named location where you can store your information permanently. तो इसका मेन जो पर्पज है फाइल का, फाइल इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन permanently. So that is the purpose of file. अब हाउ कैन यू वर्क विद फाइल? किस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं अपनी फाइल्स पे? हाउ कैन यू वर्क विद फाइल? तो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल पे? वर्किंग विद फाइल इज जस्ट लाइक वर्किंग विद योर बुक. वी कैन यूज बुक एनालॉजी. सी, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट एनी टॉपिक, so what you will do? So you will search for that topic in your book. तो क्या स्ट्रेटेजी होगी आपको टू रीच टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन ए बुक? कैसे? हाउ विल यू फाइंड? पेज नंबर पता करें. ठीक है. तो अगर इंडेक्सिंग है तो इंडेक्स पे जाके उस लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे. बट अगर कोई इंडेक्सिंग नहीं है तब सर्च करेंगे. तो ऑब्वियसली फिर देखेंगे कि वहां पे मेरा चैप्टर वाइज है कि नहीं इंफॉर्मेशन, टेबल ऑफ कंटेंट. चैप्टर वाइज है तो हम उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर के अंदर वहां पे हम देखेंगे. तो यू कैन यूज इधर ऑफ द वेज. इंडेक्सिंग है तो इंडेक्स और उस लोकेशन पे गए, ठीक है. सो यू विल रीच टू दैट लोकेशन. लेकिन क्या आप उस पे पहुंचेंगे? इंडेक्स तो इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी ना जब पहले आप बुक को ओपन करेंगे. आर यू गेटिंग? सबसे पहला जो टास्क होगा दैट विल यू विल ओपन योर बुक. Yes. So first of all, you will open the book. Once the book is open, then you can see the indexing or table of content, and from where you will see where a particular topic is existing. So means you will, after opening the book, you will specify the location where it is that. उसके क्या वे हो सकते हैं उस लोकेशन पे पहुंचने के, राइट? उनको यूज करेंगे. एंड सो यू विल स्टडी अबाउट द टॉपिक. और ये भी हो सकता है तो वहाँ पे यू कैन परफॉर्म विद फाइल, यू कैन परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, रीड एंड राइट. You can read about the topic and if you feel कि वहाँ पे कुछ मेरे को हिंट भी लिखना है, कुछ मार्क करना है, ठीक है ना, कुछ नोट्स वहाँ पे लिखना है, रिमार्क्स लिखना है, तो यू कैन स्पेसिफाई, यू कैन परफॉर्म राइट ऑपरेशन देयर आल्सो. हाईलाइट करना है कुछ, यू कैन मेक सम चेंजेस आल्सो. एंड वंस द टास्क इज ओवर, आफ्टर दैट यू विल क्लोज द बुक. सो सिमिलरली if you want to work with your file, first of all you will open your file. फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा यू विल ओपन द फाइल. और ओपन द फाइल में बेसिकली आप आफ्टर ओपनिंग द फाइल यू विल रीच टू द लोकेशन. तो ओपन द फाइल में भी आप
बेसिकली ओपन करेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपका वो फाइल स्टोर्ड है, ठीक है। सो ओपन करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन यूज कर लेते हैं, और विद ओपन फंक्शंस यू विल स्पेसिफाई योर फाइल नेम एंड द लोकेशन, एंड यू विल स्पेसिफाई व्हाट ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म। दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, रीड और राइट। तो एक बार फाइल ओपन होगी उसके बाद यू विल परफॉर्म ऑपरेशन, दैट कैन बी रीड ऑपरेशन और दैट कैन बी योर राइट ऑपरेशन। Operations are closed, you need to close the file, and to close the file we use close function. So how can you do that? Now I'll be taking one example for that. अब इसका ही एक यहाँ पे मैं एग्जांपल लेते हैं कि how will you be working with your files, right? तो उन्हीं का एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइल्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। So to work with your file तो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। आई एम ओपनिंग आइडियली हियर, आइडियली ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला टास्क हमने क्या बताया, यू विल ओपन द फाइल, ठीक है ना। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, तो फाइल को ओपन कर लेते हैं। एंड हियर यू विल स्पेसिफाई द पाथ ऑफ योर फाइल, जिसके साथ काम कर रहे हैं। तो फाइल होनी चाहिए हमारे पास, तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो यही इसी लोकेशन पे सिंपल कोड के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज इस फाइल को मैं नेम दे रहा हूँ test.txt, ये नेम दे दी हमने फाइल को, और कुछ कंटेंट यहाँ पे बना दिया, सपोज वेलकम CDAC नोएडा, इन सेक्टर 60। सपोज ये मेरे कंटेंट है फाइल के। सो इसी फाइल को मेरे को ओपन करना है, तो दिस इज द पाथ ऑफ इट। सो सबसे पहले तो कई पैरामीटर होते हैं इसके अंदर। पहला पैरामीटर है पाथ, तो यू विल स्पेसिफाई योर पाथ हियर। इसको थोड़ा मैं फॉन्ट कम कर लेते हैं। इज इट विजिबल प्रॉपरली? विजिबल हो रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर होता है आपका मोड। मोड में आप यू विल स्पेसिफाई दैट वेदर यू वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन और यू वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन। कई सारे मोड है, डिटेलिंग में तो हम कल बात करेंगे फाइल के बारे में और ज्यादा। तो बाय डिफॉल्ट मोड होता है रीड मोड। रीड मोड को रेफर करने के लिए हम लिखते हैं आर। अगर नहीं भी लिख रहे हैं सेकंड पैरामीटर, मैं नहीं भी मेंशन करता ना, तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड लेगा। तो मींस वी आर गोइंग टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन। आफ्टर दैट we can store this information in some object variable. We can call it file handle object, because through which we will handle our file. तो इसको हम file handle object भी बोल देते हैं। तो एक object variable declare कर लिया information, and now you can perform read or write operation. अगर read operation करना है तो उसके भी कई यहाँ पे functions हैं। There is one function read. Read function can be used to read information, and once you have performed this, you need to close, so you can use f.close. तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो it will be executed run module, here I'm specifying, और इसको नेम दे देते हैं हम सिंपल कोड। इसको मैं नेम दे देता हूं फाइल एग्जाम्पल .py। कुछ हाँ, अब देखो एक एरर आई यहाँ पे। क्या एरर आई?
यूनिकोड, एस्केप, कोडेक, काउंट, डिकोड, बाइट इन पोजीशन। तो इसका ऐसा क्यों हुआ? सी इन पाइथन प्रोग्रामिंग यू हैव दिस सीक्वेंस, इट इज हैविंग स्पेशल मीनिंग। इसका एक स्पेशल मीनिंग है, और स्पेशल मीनिंग को अगर मेरे को इग्नोर करना है तो क्या करते हैं हम? हाँ जी, क्या करेंगे? एक और यूज एस्केप करैक्टर है, तो मैं क्या करता हूं, अभी इसका स्पेशल मीनिंग है, उसको मेरे को अवॉइड करना है, इग्नोर कराना है इंटरप्रेटर के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक और एस्केप करैक्टर यूज कर दो, तो फिर इसका जो स्पेशल मीनिंग है वो ओवरराइड हो जाएगा। तो या एक तरीका तो यही है कि हम सबको जहां जहां पे ये आ रहा है करैक्टर, वहां पे इसको डबल कर देना, क्योंकि जैसे एस्केप सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट जो कुछ भी आता है उसका स्पेशल मीनिंग है अगर पाइथन में, इट विल बी इग्नोर्ड। तो सबको हम यहाँ पे मैंने डबल कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, क्या दिखाया इसने? परमिशन एरर, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। डेस्कटॉप पे कर रखा है इसलिए तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है, ये प्रिविलेज की वजह से तो नहीं आ रहा। एक मिनट, हम इसको एक काम करते हैं, ये एक्चुअली कहीं और प्लेस कर देना था हमें, एडमिन प्रिविलेज नहीं है, इस वजह से हो सकता है। ये अलग एरर है एक्चुअली, ये उस पे कर रखा है ना, हो सकता है ये परमिशन ना हो। सर CMD से रन कर दीजिए। हाँ वो तो देखते हैं, एक मिनट। परमिशन की एरर आ रही है यहाँ पे। आपके केस में ये कोड चल जाएगा आई थिंक, सीटी ड्राइव पे ही कर रहे हैं ना हम, डायरेक्ट सैंपल कोड उसको तो चेंज करो। डिनाई पे भी हमने वो कर दिया ना एक्चुअली, काउंट कर दिया। ठीक है, मिस्टेक है। हियर यू नीड टू स्पेसिफाई फाइल नेम, फाइल का नेम भी तो बताना पड़ेगा, कौन सी फाइल। हाँ जी, सो फाइल का, क्योंकि कौन सी फाइल के साथ काम कर रहे हैं वो भी तो बताना पड़ेगा। सो हियर test.txt, सो सी जितनी भी फाइल है ना, इवन टेक्स्ट फाइल नहीं, हियर वी हैव .py और txt, whatever files we are having, it is showing you that। फोल्डर भी दिखा दिए वैसे। सो हियर वी आर डीलिंग विद फाइल, सो हियर यू विल स्पेसिफाई, इसकी वजह से एरर था वो, क्योंकि फाइल नेम नहीं आया हमारा। सो नाउ इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, सी इट इज वर्किंग फाइन, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये प्रोसेसिंग हो गई या रीड ऑपरेशन की, बट आई वांट टू डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन वेयर व्हाटएवर आई एम रीडिंग इट। तो ऑब्वियसली इसको प्रिंट में इशू कर दो, क्योंकि जब तक प्रिंट नहीं करेंगे तो डिस्प्ले नहीं करेगा। So I want that whatever information is being read, I want to display that information. तो आप सिंपल यहाँ देखेंगे तो it will be displayed to you here also. So information is coming,
like this here. So in this way you can read. Even there is one more case. If your file is already in current working directory, if your file is already in current working directory, then you need not to write the complete path. उस केस में आप complete path नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम if we are using same directory many times, तो पाइथन इंटरप्रेटर उसी को एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है. तो अभी चेक करते हैं इसको ट्रीट कर रहा है कि नहीं. वैसे तो हम चेक कर सकते हैं os.getswg से. तो अगर ये इसको ट्रीट कर रहा है तो इट शुड बी वर्किंग. सी इट इज वर्किंग. सो इट इज ट्रीटिंग इन दिस सेशन. बार बार हम एक ही लोकेशन पे जाते हैं तो इट इज ट्रीटिंग दैट एज ए करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो अगर आपका कोड ऑलरेडी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, so in that case you need not to write complete path. अगर नहीं है तो complete path देना पड़ेगा. Even it is also possible that you can set any directory as a current working directory. कैसे? अगर मेरी डायरेक्टरी कोई करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे चेंज करेंगे, तो आप एक काम और कर सकते हैं. अभी अगर हम देखें import os.getcwd, it is to know about current working directory. It is showing that. तो देखो अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वही बन गया जहाँ पे हमारे कोड है. लेकिन अगर आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज भी करना हो ना किसी और डायरेक्टरी पे, सो कैसे करेंगे? उसके लिए इस ओएस के अंदर ही एक और मेथड है csdir, चेंज डायरेक्टरी. एंड चेंज डायरेक्टरी में यू कैन स्पेसिफाई योर डायरेक्टरी. जिसको भी आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी बनाना है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं. और रिमेंबर, अगर पास कर रहे हैं तो या तो ये डबल हो, ये जब पास करना पड़ेगा ना डबल करना पड़ेगा, या फिर एक और तरीका है. अभी जैसे हमने यहाँ पे किया था कंट्रोल, वही कर लेता हूँ. वन ऑप्शन इज दैट कि यू कैन मेक डबल ऑफ इट, और देयर इज वन मोर ऑप्शन. मैं नहीं चाहता ये, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने कॉपी किया पाथ, फाइल नेम भी होना चाहिए. सो हियर वी आर यूजिंग इट. तो इसको इसी तरह से लिया और फाइल का नेम स्पेसिफाई किया एंड यू कैन यूज आर हियर. सो आर करते क्या होगा, नाउ इट विल ट्रीट दिस थिंग एज ए रो स्ट्रिंग. अभी एक रो स्ट्रिंग की तरह इसको यहाँ पे लेगा. तो फिर ये रो स्ट्रिंग की तरह ले रहा है तो ये मेरे सिंपल कंटेंट होंगे इसके, ना कि आपके स्पेशल कैरेक्टर, राइट. सो एक ऑप्शन ये भी अल्टरनेटिव, या तो इनको डबल करो या डबल ना भी करे, सिंगल ऐसे ही रहने दिया. यू जस्ट नीड टू राइट आर बिफोर दैट. तो मोमेंट यू आर पुटिंग आर, इट विल द थिंग दैट यू आर स्ट्रिंग दैट यू आर राइटिंग आफ्टर दैट इट विल बी ट्रीटेड एज ए रो स्ट्रिंग. तो ये सब कंटेंट बन जाएंगे. अगर मैं करूँ तो आउटपुट सेम आएगा यहाँ पे भी. तो ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका था जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. और करंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो कंप्लीट पाथ को बताने की भी जरूरत नहीं है आपको, केवल फाइल नेम विद इट्स एक्सटेंशन यू कैन स्पेसिफाई, तो इट विल बी वर्किंग. अभी जो रीड फंक्शन है, रीड फंक्शन कैन वर्क इन डिफरेंट वे. रीड फंक्शन बेसिकली इट इज यूज टू रीड करेक्टर फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट इफ यू हैव नॉट पास एनी पैरामीटर. अगर मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास कर दिया, सपोज इफ आई हैव पास्ड 4, इट मींस it will read 4 character from the beginning. So अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो पहले सारे कैरेक्टर कर रहा था, लेकिन उस फाइल के केवल 4 कैरेक्टर्स को ही रीड कर रहा है, राइट. उसके अगर मैं यहाँ पे उसके बाद f डॉट रीड करूं तो, और यहाँ पे कोई यूज नहीं, इट मींस इट विल रीड एंटायर कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन. अब हुआ क्या है कि आपने पहले 4 कैरेक्टर को रीड किया, तो आपका कर्सर जैसे आपने 4 कैरेक्टर को रीड किया, when you have read 4 characters, your cursor will be at this location. Now ये 4th location पे आ गया cursor. And again if you are issuing, again if you are calling read function without any parameter, so it will read everything. It will read entire content but from this present location. ये आपका यहाँ से रीड करना शुरू करेगा. तो see the output, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ पहले 4 कैरेक्टर रीड करेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर. तो पहले इसने 4 कैरेक्टर रीड किए, प्रिंट है तो स्लैश एन आ जाएगा, एक और स्लैश एन है तो बाकी का जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया. रिगेटिंग ये भी एक ऑप्शन है. और अगर सारे कंटेंट रीड करने हैं तो वो तो हम है कि आप उसको करो ही मत. हैश एफ डॉट रीड है तो सारे कैरेक्टर को रीड करेगा. सो इट इज रीडिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग. तो ये फिर से वही आउटपुट आ गया आपका. Now there are various other functions also that can be used. एक फंक्शन है मेरा read line. read line क्या करेगा? It will be used to read first line of it. So अगर मैं read line यूज करूं,
सो इट विल यूज टू रीड फर्स्ट लाइन. लूपिंग में कर दे तो हम सारी लाइन को 1 by 1 रीड कर सकते हैं. और एक और फंक्शन है रीड लाइन्स. रीड लाइन्स क्या होता है? इट विल रीड ऑल द कंटेंट ऑफ योर फाइल and return the output in the form of a list, and every line of your file will be treated as one element of that list. और लिस्ट के फॉर्म में दे रहा है बिकॉज लिस्ट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल मोस्ट वर्सेटाइल स्ट्रक्चर अवेलेबल इन पाइथन. और एक बार मेरे फाइल के कंटेंट लिस्ट के फॉर्म में आ गए तो फिर जो चाहे हम उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो ये क्या करेगा? आपकी फाइल के जो भी कंटेंट है उनको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है. और हर एक फाइल का हर एक लाइन, एवरी लाइन ऑफ योर फाइल विल बी ट्रीटेड एज वन एलिमेंट, वन वैल्यू ऑफ योर लिस्ट. अगर 2 लाइन है तो आपकी एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे. 0 इंडेक्स पे ये फर्स्ट लाइन, 1 इंडेक्स पे ये. सी सो हियर इट इज रिटर्निंग स्लैश एन जस्ट सिंपली लाइन ब्रेक को दिखाने के लिए. अगर मैं अब यहाँ पे यूज करूँ ना, रीड लाइन्स यूज किया, अगर इसकी जगह मैं रीड लाइन्स यहाँ पे फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर मैं कर दूं यहाँ पे 0, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Welcome to CDEC. Welcome in CDEC Noida. बिल्कुल. So if I'm executing it, see you are getting welcome in CDEC Noida because this app dot read line will give you the list, and on that you are using 0 index, so it will just get the value 0 index. अगर 1 लिख दूंगा तो ये वाली वैल्यू को लेगा. So जैसा चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं. तो you can use this read line also where you are getting your information in the form of a list. स्टोर करना हो तो हम किसी लिस्ट के अंदर स्टोर भी कर सकते थे इसको, और फिर हम प्रिंट कर सकते थे. तो इट इज अप टू यू, क्योंकि लिस्ट बनी है तो अगर हम यूज करेंगे तो लिस्ट के फॉर्म में जाएगी, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी वहाँ पे. फिर आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं. जैसे मैं कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जैसा भी मैंने किया है, तो प्रिंट L1 कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो वो भी आप कर सकते हो. While getting, you are getting the same. So अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं. अभी फाइल का आई हैव जस्ट टेकन ओवरव्यू. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस फाइल हैंडलिंग, फाइल ऑपरेशन, फाइल मैनेजमेंट इन डिटेल. वहाँ पे आपका राइट ऑपरेशन के भी केस लेंगे, रीड के भी और भी केसेस लेंगे, और कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउ कैन वी डील विद द फाइल इन डिफरेंट वे, वो हम कल डिस्कस करेंगे. आज के एक्सरसाइज में भी अगर एक्चुअली आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उसके लिए आई हैव मेंशन दोज ओनली. एक सिंपल ओवरव्यू लिया है इस फाइल का. So now we will have a look at our PPT also, क्योंकि फाइल्स के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने PPT में भी स्पेसिफाई किया है. So basically what is file? File is a named location on disk to store related information. While a program is running, its data is in memory. When the program ends or the computer shuts down, data in memory disappears. To store data permanently, you have to put it in a file. File is used to permanently store data in a non-volatile memory. Since random access memory is volatile, which loses data when computer turned off, we use file for future use of the data. We have mentioned this thing. Files are usually stored on a hard drive, floppy drive, or CD-ROM, basically secondary memory storage. So when there are a large number of files, they are often organized into directories. Each file is identified by unique name or combination of file name and directory name. By reading and writing file, program can exchange information with each other and generate printable format like PDF. Working with file is lot like working with books. To use a book, you have to open it. इस analogy को मैंने लिया भी था example में. When you are done, you have to close it. While the book is open, you can either write in it or read from it. In either case, you know where you are in the book. You know the location. Most of the time, you read the whole book in its natural order, but you can also skip around. All of this applies to file as well. To open a file, you specify its name and indicate whether you want to read or write. Opening a file creates a file object. In Python, a file operation takes place in the following order. Open a file. After that, you can perform operation. It can be your read or off or write. And once the operations are completed, you need to close the file, right?
उसके लिए क्लोज फंक्शन करते हैं। ओपन का केस है, ये जो सिंटैक्स लिखा है, यू विल बी राइटिंग दिस ओनली इफ दिस पर्टिकुलर फाइल test.txt इज इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। इफ योर फाइल इज नॉट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी देन यू नीड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ और यू कैन जस्ट चेंज इट। और यहाँ पे अगर एक और चीज देखो ना, यहाँ पे देखो बैक फॉरवर्ड स्लैश लिखा है। वैसे हम बैकवर्ड स्लैश करते हैं पाथ में, बैकवर्ड स्लैश है या तो आर लिखें या डबल करें, या फॉरवर्ड स्लैश भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। So we have this. So we can specify the mode while opening a file. In mode we specify whether we want to read, write or append a file. तो write ये append भी write ऑपरेशन ही होता है, ये हम बाद में हम डिफाइन करेंगे, राइट। और बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट मोड में फाइल करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट फाइल, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, इवन आपकी .py वो भी टेक्स्ट फाइल है, सो उन पे रीड ऑपरेशन आप चला सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी फाइल होती है जहाँ पे, जिनको बाइनरी फाइल बोलते हैं, जहाँ पे कंटेंट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वे में होते हैं, जैसे इफ यू आर डीलिंग विद इमेजेस, इफ यू आर डीलिंग विद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, राइट। तो उसके लिए एक मोड होता है बाइनरी मोड। बाय डिफॉल्ट अभी टेक्स्ट मोड है, अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डील करें, टेक्स्ट फाइल के साथ डील कर रहे हैं। बाइनरी का केस हम कल देखेंगे। सो बाकी सिंटैक्स तो हम लिख चुके हैं। पहले आप ओपन करेंगे, फाइल का नेम दे देंगे विद दिस पाथ, अगर इफ इट इज नॉट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। एनकोडिंग को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउअडेज आवर पाइथन इंटरप्रेटर आर इंटेलिजेंट एनफ टू नो द अंडरलाइंग एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होती है कि कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए यूज होता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, वो डिफाइन होता है कि कौन सी एनकोडिंग स्कीम वहाँ पे यूज की गई है। तो अभी जो एनकोडिंग स्कीम यूज हो रही है विंडोज के लिए होती है CP1258 करके कुछ है, और लिनक्स यूनिक्स के लिए UTF-8। तो जो हमारे इंटरप्रेटर है, दे आर इंटेलिजेंट एनफ टू गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम दो ही पैरामीटर यूज करते हैं जनरली, आपका पाथ और मोड। मोड मीन्स रीड ऑपरेशन और राइट। इवन अगर सेकंड पैरामीटर यूज नहीं कर रहे हैं ना मोड को, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी रीड मोड। बेसिकली द कंप्लीट सिंटैक्स विल बी लाइक दिस। अच्छा, ट्राई फाइनली, ओके ओके, इसका भी केस ले लेते Sir, हैं। if we forgot to close the file, then what will happen? काम करेगी, बट इट कैन, योर फाइल कैन बी वल्नरेबल। फाइल ओपन है तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ठीक है ना। काम तो आ जाएगा, आउटपुट करेगा, काम तो करेगी अपना, लेकिन योर फाइल इज वल्नरेबल, इनसिक्योर है। फाइल ओपन है आपकी तो कुछ भी हो सकता है फाइल के साथ। आर यू गेटिंग? Yes, sir. इसलिए हमेशा क्लोज जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अभी ये जो सिंटैक्स है आपको, अभी सिंटैक्स हमने इस तरीके से लिखा, we have written our syntax like this. थोड़ा सा फॉन्ट अब बढ़ा लेते हैं इसका। So here we have written this. See, इस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम है, बाकी काम तो ये भी कर रहे हैं। इन दिस व्हेन वी आर रीडिंग द कंटेंट, चलो रीड कर लेते हैं कंटेंट, तो वो भी सिंपल एज इट इज रीड करते हैं कंटेंट को। तो मैं printf.read ये यूज कर देता हूँ, बाकी को कमेंट कर लेता हूँ। तो वी आर रीडिंग ऑल द कंटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, बाकी को कमेंट कर दिया। सो when we are executing it, it will read the content of the file, right? So but there is one problem. Suppose ये कोड आपका ठीक है, but there is something wrong with it. जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करें ना, वहां पे कुछ गलत लिख गया आपसे, so what will happen? As Python is interpreted language, so if you are having any error in line, it will not go to the next line. तो अगर यहाँ पे कुछ एरर आ जाए तो आपका ऑपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले कहीं पे भी एरर आ जाए तो आपका ऑपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट आपकी फाइल क्लोज भी नहीं हुई। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि फाइल आपकी क्लोज नहीं हुई अगर इससे पहले कहीं एरर आ जाए। टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम वी हैव टू ऑप्शंस। उसके लिए दो तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे फाइल के साथ। एक्चुअली एक ऑप्शन होता है बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी हम डिटेलिंग में लेंगे। उस एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम एक ओवरव्यू मैं ले लेता हूँ। क्या करते हैं, हम कुछ ब्लॉक यूज करते हैं। वहां पे हम कुछ ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली।
तरीका तो ये है। इसमें हम क्या करेंगे कि ट्राई में वी राइट द कोड, वी राइट अवर मेन कोड एक्चुअली, जो हमारा मेन कोड है ना वो हम लिखेंगे। एंड इफ and whenever we are writing code, it may be the case some error may be introduced in your code. So if some error is coming in your code, you can handle that error by writing code in except block. तो क्या होगा, जैसे इसमें एरर आती है आपका कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है ट्राई से एक्सेप्ट पे, और ये काम करेगा उसी तरीके से जैसे भी एक्सेप्ट में आपने इसको हैंडल किया होगा। जनरली हम मीनिंगफुल मैसेज दिखा देते हैं यूजर को कि ठीक है ना, कि सपोज यू आर डिवाइडिंग एनी वैल्यू बाय 0, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि अगर जैसे 0 करेंगे एक एरर है, तुरंत कंट्रोल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हैं आप कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, तो यूजर को मैसेज मिलेगा तो पता लग जाएगा यूजर को कि क्या गड़बड़ की है। और फाइनली में यू विल बी राइटिंग दैट कोड, तो यहाँ पे तो आप कोड लिखेंगे वो कोड, यू विल बी राइटिंग कोड टू हैंडल एरर्स introduced in try block, और फाइनली में क्या होगा, यू विल राइट, जो भी यहां पे आप कोड लिख रहे हैं, यू विल राइट कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड irrespective of error. होता क्या है, सपोज यू हैव रिटन सम कोड एंड सम एरर इज कमिंग, moment error is coming, your control will be shifted from try to accept. It will handle the error as per the provision that you have provided in accept block, and after that this control will be shifted to the finally, and after that whatever code you have written finally it will be executed, right? Suppose there is no error in code. If there is no error in code, that code will be executed, and after that your control will be shifted in finally, and whatever code you have written finally that will be executed. Means चाहे आपकी एरर हो रही है या नहीं हो रही है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है अगर आपने इसको डिफाइन किया है तो। अब इस सिनेरियो को हम यूज कर सकते हैं टू राइट डाउन आवर कोड इन ए मोर बेटर वे। कैसे, तो यहाँ पे हम इसी कोड को कुछ ऐसा भी लिख सकता था, हम वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, कि जो मेरा मेन कोड है, whatever main code I am writing here, I can write it here, एक्स्ट्रा को हटा देते हैं, और इंडेंटेशन का भी ध्यान रखेंगे, कॉलन यहाँ पे भी लग गया है तो इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मेन कोड लिखा, और जो कोड क्लोजिंग का कोड है, ये क्लोजिंग का कोड मैं क्या करूंगा, आई एम राइटिंग इन फाइनली ब्लॉक। तो क्या होगा, अगर एरर आ रही है उसको हैंडल कर लेंगे। अभी मैं कोई स्पेसिफिक कोड नहीं लिख रहा हैंडलिंग का, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट का बॉडी पार्ट तो बताना पड़ेगा, तो मैंने पास लिख दिया। पास मीन्स नथिंग बट इट इज कंप्लीटिंग, तो एरर नहीं आएगी। सो क्योंकि एक्सेप्शन एररिंग को डिटेलिंग में हम बाद मिलेंगे। सो हियर अगर कोई एरर है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर फाइनली पे जाएगा, तो यहाँ पे भी क्लोज फंक्शन कॉल हुआ। और अगर कोई एरर नहीं है, ये वाला कोड काम करेगा, फिर फाइनली पे आएगा, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्लोज हुआ। तो चाहे एरर हो या ना हो, अब एफ डॉट क्लोज कंसिडर होगा, तो आउटपुट वही होगा जो पहले था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ पहले, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली अब इसी को कंसिडर करेंगे। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, तो आउटपुट सेम आएगा जो पहले था, बट दिस कोड इज मोर, इट इज बेटर देन अर्लियर कोड दिस वन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हैंडलिंग कर रहे हैं। एक और तरीका है इसी को करने का, यू हैव वन मोर ऑप्शन टू डू द सेम। क्या, बाय यूजिंग विद क्लोज। इसी कोड को आप बाय यूजिंग विद भी लिख सकते हैं। कैसे, एक तरीका तो ये, विद से आप क्या करेंगे, विद क्लोज से आप ऐसे लिख सकते हैं, विद एंड वट एवर कोड यू आर राइटिंग related to the opening of it, you can just write down that code here with open as and file handle object, कोई भी नेम जो भी लिखे, सपोज मैंने एफ लिखा तो यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ, and here after that you can specify your line of code to specify operation, whatever you want to do, you can write down your line of code, what you want to do, you want to perform read operation। इंडेंटेशन का ध्यान यहाँ पे भी रखेंगे क्योंकि कॉलन यहाँ पे भी लग गया है। सो तो इसको करेंगे। इस केस में विद के साथ आपको क्लोज को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इफ यू आर कंट्रोलिंग योर कोड थ्रू विद क्लोज, इट विल ऑलवेज क्लोज द फाइल।
वेदर ऑपरेशन इज बीइंग कंप्लीटेड और नॉट। अगर एरर आ जाती है तो भी फाइल को क्लोज करेगा, अगर आपका सक्सेसफुल होता है ऑपरेशन तो भी फाइल को क्लोज करेगा। तो इसका सिनेरियो यही होता है। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब केवल डायरेक्टली इसी कोड को कंसिडर करेगा। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग, आउटपुट सेम होगा, आउटपुट सेम आया है, बट दिस अप्रोच बेटर। तो ये ऑल्टरनेटिव है कुछ, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। So this is about this session. So now in the second half, I will be providing you one lab exercise which will be based on module and packages. जो आज हमने किया है ना module pack, उस पे बेस ही exercise होगी, and there you will be working, you will be dealing with module and packages, various requirements related to that, but in the form of file. तो उसके लिए फाइल का आइडिया होना चाहिए, and now you have that. जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मैं शेयर कर दूंगा अभी गूगल क्लासरूम पे, so you'll get it from there. Right, so we will continue this session at 2:30 in second half. अगर कोई query है तो you can ask. If you have any query you can ask. मुझे एक क्वेरी है सर, ये अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ जी सर ये वीडियोस जो है ना ये अपलोड कर दीजिएगा गूगल ड्राइव पे, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके वीडियोस ठीक है ठीक है, कुछ तो मैंने की थी वीडियोस, उनको मैं हटा दूंगा, और बाकी जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं अपलोड कर दूंगा उस पर, ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं बताइए। सर मैं जो न्यू फाइल कोड का जो रन कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर आ रही है। शेयर योर स्क्रीन प्लीज। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, ये क्लोजिंग गलत हो गई आपकी, ये माई फाइल डॉट टीएक्सटी से वो पैरेंथेसिस हटाओ एंड पुट दिस पैरेंथेसिस आफ्टर दिस आर। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करो। कुछ है नहीं क्या फाइल के अंदर? नथिंग नहीं सर, फाइल में तो है लिखा हुआ था। एक मिनट, माई फाइल डॉट टीएक्सटी ठीक है, फाइल दिखाओ, एक बार फाइल दिखाओ, फाइल में है तो डिस्प्ले होता। माई फाइल डॉट टीएक्सटी ब्लैंक है कैसे होगा? चलो ठीक है हो जाएगा। हाँ इसको करके सेव कर लो और फिर ट्राई कर लो, एक बार करिए। सेव क्या कर ली ना फाइल? राइट सर। ठीक है, अब करो एग्जीक्यूट दोबारा, ठीक है। राइट सर, थैंक यू सर। Okay, so now you can ask other queries if you have any presently. Yes. सर हमारा कैलेंडर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लाइक मॉड्यूल्स कब से कब तक है वो सब। टेंटेटिव शेड्यूल, हाँ उसके लिए हम यहाँ टेंटेटिव शेड्यूल जो है यू कैन आस्क अबाउट द सेम फ्रॉम रवि सर। रवि सर से आप एक बार पूछ लेंगे क्योंकि वही उसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है ना। सर अटेंडेंस का भी मतलब वही सेम पोर्टल वगैरह पे ही होगा या फिर कहीं और होगा? उसके लिए आपका एक है ना अकाउंट बनेगा। वैसे तो आज से मैं ना अटेंडेंस लेना शुरू करूंगा वैसे प्रॉपरली, ठीक है। अभी तक तो मैं ऐसे डाउनलोड कर रहा था, बट अब अटेंडेंस वैसे लेंगे। वो आज मेरे को मिल गई आपकी पूरी लिस्ट। सो बाकी आपका एक यहाँ पे आईएसओ पे एक सीएमएस पोर्टल बनाया जाएगा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, उसमें आप रजिस्टर करेंगे। उसमें रजिस्टर करने के बाद फिर अटेंडेंस उस पर आपकी अपडेट होती रहेंगी। उसमें थोड़ा हो सकता है टाइम वाइम लग जाए अपडेट करने में,
तो उससे भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी अटेंडेंस चल रही है आपकी। ठीक है, ठीक है। बाकी टेंटेटिव शेड्यूल के लिए आप रवि सर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अभी हमें भी नहीं मिला तो दे आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कि कितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी फाइनलाइज हो रहा था, आपकी कुछ फीस वीस की फॉर्मेलिटीज हैं अकाउंट वगैरह से, वो टास्क चल रहा था। एक बार अब वो फाइनलाइज होने के बाद फिर इट विल बी your tentative schedule will be prepared and you can see the same on that CMS portal। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पे आप डे वाइज आप अपना पूरा शेड्यूल देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे पे आपका कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक चल रहा है, राइट? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी। हम अब जो फाइल वाइल में हम लोग जा रहे हैं, तो नाउ इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन हम अपनी तरफ से हाउ आर वी अरेंजिंग आवर डायरेक्टरीज एंड वो सब थोड़ा इफेक्ट करता है, राइट? हाउ वी आर राइटिंग आवर फाइल नेम। So how do you suggest कि हम जो अभी classes moving forward, how should we arrange our I don't know directories, programs, वो सब, ताकि it's just the same for everyone in the class? So arrange means क्या कोई रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं आप? मतलब कि like for example in my one I've made for each lab वाला day के लिए जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, मैं वैसे एक बनाया फाइल फोल्डर, सॉरी, और ठीक है। उस फोल्डर के विद इन जो भी वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे वो वैसे स्टोर किया हूँ। एंड सो आई एम श्योर अदर्स हैव डन इट स्लाइटली डिफरेंटली, एंड अब तक देयर वाज नो प्रॉब्लम बिकॉज हम लोग जस्ट फाइल से यूज कर रहे थे, तो कहीं पे भी फाइल हो नॉट एन इशू। बट अब जब हम लोग मॉड्यूल्स वो सब कर रहे हैं, so should we have like a uniform way of how we are storing our stuff so that it's the same for everyone, we know how to help each other and also in the class? So yes, we can work like that, क्योंकि once we have this concept, so even you should manage your things like that. You are already doing it, so I suggest कि दूसरे students भी उसको उस तरीके से manage करें, तो that will be better obviously. Okay, sir. Sir, I have a doubt in assignment number 5, question number 5. Okay, assignment number 5. Okay, let me open it. Program to count the number of vowels in a string by using dictionary. Sir, इसमें कौन से method apply करेंगे? आपने क्या use किया है? Just show me that. सर मैंने अभी कुछ मतलब नहीं किया उसके लिए, बस एक वो बनाया है, डिक्शनरी क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया सर। हाँ, एक मिनट मैं ओपन करता हूँ। लैब एक्सरसाइज 5, हाँ लैब एक्सरसाइज 5। अब कौन सा क्वेश्चन है ये? लैब एक्सरसाइज 5 का 6 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। हाँ, काउंट द नंबर ऑफ इच वोवल इन स्ट्रिंग बाय यूजिंग, हाँ इसमें मैंने स्पेसिफिकली बाय यूजिंग डिक्शनरी बोला है आपसे, तो कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे एक सुडो को वो बता देता हूँ, what will be the steps and then you can try it. ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है then we will look at your code also. So what you will do in this case, you can do one thing, that initially you can create a dictionary where you are using these vowels a, e, I, o, u as a key and store 0 with everything. सबको पहले 0 स्टोर कर दो, right? And whenever after that, whenever you are writing any string, you can match that whether that string is containing any of the vowels a, e, I or u. If it is matching with that, then this 0 count, जो 0 वैल्यू स्टोर किया ना मैंने इन की पे a, e, I और u पे, it should be incremented by 1. जो भी मैच करता है वो इंक्रीमेंट होता रहे, 1 by 1 इंक्रीमेंट होता रहे, और फिर फाइनली इस तरह से जब होगा, फाइनली जो चेंज आएगा, ये चेंज होती रहेंगे आपकी वैल्यूज। फाइनली एक ऐसी डिक्शनरी प्रिंट हो जिसके अंदर मेरे को पता लगे कि ए कॉलन कितने आ गए, ए कितने हैं। अगर कोई भी ए नहीं है तो 0 ही रहेगा, नहीं तो काउंट उसी के अकॉर्डिंग है कितने ए हैं। फिर सेकंड ई किया है मैंने की, तो ई पे वो
कॉलन करके वही वैल्यू दिखाए जितने ई उसमें है, राइट? सो इट शुड बी लाइक दैट। तो आप कैसे करोगे? इनिशियलाइज कर लो 0 से सबको पहले, और फिर उसके बाद जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से वैल्यू को रिट्रीव करो। You can iterate through the values each and every character of a string and match whether it is matching with any of the key of the dictionary or not, A, E, I or U. If it is matching, increment the value of that by 1 every time. In this way, finally, whatever dictionary you will be getting, you will be having number of vowels in that. Okay. ठीक है, तो थोड़ा आइडिया मिला तो इस तरीके से ट्राई टू राइट डाउन योर कोड। और डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करें, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अगर मेरे को सेम वैल्यू एक साथ पहुंचानी है, ये भी कर सकते हैं आप अपने से। स्टैटिक डिक्शनरी भी बना सकते हैं, डायनेमिक भी बना सकते हैं, इट इज अप टू यू। सर हाँ जी सर, लैब एक्सरसाइज 4 में भी लाइक सेम तरह का क्वेश्चन था, बट उसके अंदर डिक्शनरी नहीं, मतलब उससे मतलब उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन था कि प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑल इन अ स्ट्रिंग। तो मतलब मैंने उस समय भी डिक्शनरी के फॉर्मेट से ही किया था जो आपने अभी बताया वे। अच्छा तो उसका दूसरा वे कौन सा है फिर? तो दूसरा तो नॉर्मल तरीका है कि बिना डिक्शनरी के हमने ऐसी अलग से लिए वेरिएबल और उनको काउंट करके डिस्प्ले कर दिया। तो मतलब प्री डिफाइन कर दे सारे वेरिएबल्स कि ये पर्टिकुलर कोई काउंट करना है। बिल्कुल, वो तो नॉर्मली केस हो गया। डिक्शनरी में हमने थोड़ा सा डिक्शनरी के टर्म्स में चीजों को चेंज कर लिया, तो दोनों ठीक है। अगर आपने डिक्शनरी के थ्रू भी कर दिया ना वहां पे भी, दैट इज आल्सो फाइन, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके सर। इसमें मैं फोर्सली डिक्शनरी के थ्रू ही कराना था आपसे, क्योंकि डिक्शनरी का यूज भी हो जाए और रिक्वायरमेंट भी वही है। बिकॉज फॉर द से एनी रिक्वायरमेंट देयर में बी मल्टीपल लॉजिक, देयर में बी मल्टीपल वेज टू इम्प्लीमेंट इट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो किस तरह से चीजों को सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं, राइट? ओके सर। So you can ask more queries if you are having any. सर लैब एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या करना है सर? Lab exercise 6 and question number 11. Write a function filter long word that takes a list of words and an integer and returns the list of words that are longer than n. तो बेसिकली क्या करेंगे, यू आर पासिंग लिस्ट, एक फंक्शन बनाएंगे। इन दैट फंक्शन देयर विल बी 2 पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर आपकी एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर आपके स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी, वर्ड्स होंगे, राइट? सेकेंड पैरामीटर न्यूमेरिक टाइप होगा। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, सीडैक नोएडा, सीडैक पुणे, सीडैक हैदराबाद, सीडैक त्रिवेंद्रम, और सेकंड, तो एक लिस्ट है पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर में मैंने लिख दिया 5। तो मेरे को करना है क्या, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है? इस जो लिस्ट है, जो फर्स्ट पैरामीटर जो कि लिस्ट टाइप है, अब इसमें से मेरे को केवल उन वैल्यूज को रिट्रीव करना है जिनका जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन n, मतलब 5 से ज्यादा जिसमें करेक्टर है, वो केवल उन वैल्यूज को रिटर्न करके मेरे को एज ए आउटपुट दे। आर यू गेटिंग? यस सर, समझा। सो दैट यू विल डू। थैंक यू सर। एंड स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रॉम द सेशन 1 टू दिस सेशन, हम चाहे किसी भी सेशन पे मूव ऑन कर जाए, अगर आपकी क्वेरी किसी अर्लियर सेशन से, सपोज आप अभी आपकी कोई क्वेरी सेशन 1 से रिलेटेड है, सो यू कैन आस्क एट एनी टाइम, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम आगे चले गए और आपकी कोई क्वेरी रह गई और आप पूछे ना। सो कोई भी क्वेरी हो,
कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो किसी भी टॉपिक के जो अब तक हमने कवर किया, यू कैन आस्क इट एनी टाइम, राइट? ओके सर। ओके, अभी अगर प्रेजेंटली कोई क्वेरी नहीं आ रही है माइंड में, तो कैन वी क्लोज द सेशन नाउ? Yes, sir. Okay, so here I'm going to close this session now. We will meet again at 2:30.